وہ دونوں اجڑے دیار کا منظر پیش کرتی اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھیں۔ اتنا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اپنے محرم رشتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے ایک غیر شخص سے اپنے مسائل ڈسکس کیے تھے جس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی فرحان کی دشمن بنی تھیں، ایک اسے موت کا راستہ دکھاتی رہی تو دوسری اسے موت کی وادیوں میں دھکیل آئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے محرم کے لیے حدیں پلانگ گئی تھی اور اگر فرحان کو کچھ ہو گیا تو اپنوں کو تہی دامہ کرتے والوں کو اکثر چاک گریبان سینہ کوبی کرتے ماتم زدہ رہتے، ایسے ان کا حال تھا۔ محبت شناس لوگ دوسروں کے دلے سے نہیں کھیلتے، محبت شناس لوگ پہلے یقین کرنا سیکھتے ہیں اور پھر محبوب کے رنگ میں رنگتے ہیں، جبکہ یہاں تو الٹی نیا بہہ رہی تھی۔ دل سے درد سے پھٹا جا رہا تھا، تبھی آہیں اور زور پکڑنے لگی تھی۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہوا تھا جو کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی پاس پرس نہیں کر سکتی تھی۔ رمز خاموشی کو توڑتی انا کی یہ آواز پر سے سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ آر جے کون ہے؟ انا کو کچھ کہانی تو پتہ تھی لیکن ابھی بھی کچھ سوال رہ گئے تھے۔ رمز نے گہری سانس بھرتے سے دلام آر جے کی دوستی سے فرحان اور اس کے ساتھ موسیٰ اور اپنے ریلیشن کی حقیقت بھی واضح کی تو وہ خود کو انتہائی گہریوں میں محسوس کرنے لگی تھی۔ دلہام نے اگر اسے آر جے سے دور رہنے کو کہا تھا تو وہ جیلسی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے لمحے سے بچانا چاہتا تھا جب وہ انا کی ڈھال میں دلہام پہ بازی کھیل جائے، اور انا کی بے وقوف یا متجسس طبیعت نے دلہام کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور فرحان کا خیال آتے اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، بچپن سے اتنے بڑے مصائب سے گزر رہی تھی۔ کیا ہم فرحان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ رمز کی آواز نے اس کی گرد میں مزید اضافہ کیا تھا۔ شاید نہیں۔ انا اس شاطر انسان کے منصوبوں کو سوچ رہی تھی، کوئی کلو کچھ جو ہمیں آر جے تک لے جائے۔ رمز کی آنکھیں برس رہی تھی۔ ایلومیناتی، رمز کو کوئی ایسا شخص جو تمہیں یاد ہو جب تم ایلومیناتی کا حصہ بنی اور اسے آر جے کے آس پاس دیکھا ہو، کچھ ایسا بھی؟ انا نے رمز کے ہاتھ تھامے تھے۔ رمز کے دماغ میں کچھ دھندلے عکس تھے پر واضح نہیں۔ رمز سے نفی میں سر ہلایا تو انا مایوس ہوئی تھی۔ ان کے سینٹر ایسا کچھ میں آر جے کو یہیں ملی، انہی وادیوں میں جب بھی ملی ہو تو یقیناً یہاں اس کا کوئی ٹھکانہ تو ہوگا نا۔ انا کی انویسٹیگیشن رمز کو بہت ایریٹیٹ کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے سوالوں کے الجھے جواب دے رہی تھی جب انا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ رمز نے خوفزدہ انداز میں دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے یقین ہے فرحان یہیں کہیں ہے ہمارے آس پاس۔ انا کی پر یقین انداز پر رمز نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو آر جے جانتا ہے دلہام اسے پتال سے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن وہ تمام جگہیں جن پہ دلہام کا دھیان نہیں جا سکتا وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سوچو، اس کا کوئی ٹھکانہ جہاں اسے سکون میسر ہو اپنی عبادت کے نام پہ انہوں نے جرائم سرچ کرنے کے لیے۔ انا رمز کے دماغ کے بند کھولنے کی کوشش میں تھی۔ وہ دونوں کافی دیر دماغ لڑاتے انٹرنیٹ تک پہنچی تھی۔ ایلومیناتی کے پیروکار لوگ جو سرائے ڈھونڈتے تھے وہ انسانی بستیوں سے دور پرسکون جگہوں پہ ہوتے تھے جہاں ذرا بھی چرند پرند یا کسی قسم کے شور کی آواز انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا وہ اس لیے بھی سوچتے تھے کہ وہ اپنے خدا سے کلام کرنے میں ناکام رہ جاتے، نعوذ باللہ، لوسیفر شیطان کا خدا۔ لیکن ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا انا۔ بالفرض وہ یہاں آس پاس بھی کہیں ہے تو اتنے بڑے پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان ڈھونڈنا، وہ بھی اتنے خراب موسم میں، یہ ممکن ہے؟ اور بھائی؟ رمز کسی بھی قسم کی نئی بے وقوفی سے بچنا چاہتی تھی۔ مت بھولو رمز، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں ہم سب سے زیادہ قصوروار ہے اور ہم ہی فرحان کو سیو کر میں اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے ہیں، چیزیں شاید بہتر ہو جائیں۔ انا کا گلٹ اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخر کو انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں سب سے پہلے ارد گرد کے ڈھابے اور ہوٹلوں میں آر جے کی تصویر دکھاتے اس کی موجودگی جاننا چاہ رہی تھی، پر وہاں سے بسوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان کا پہلا قدم بھی بہت برے طریقے سے فیل ہو گیا تھا۔ وہ شکستہ حال گھر کی طرف بڑھی تھی جب کچھ سوچ کے انا نے گھر سے مخالف سمت کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ انا، ہم بھٹک جائیں گے، رمز نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آر جے ہمیشہ اسی راستے پہ گھومتا تھا، یہی کہیں آس پاس تو نہیں تو کچھ دور سے اس کا ٹھکانہ ضرور ہوگا۔ انا پر یقین تھی رمز کے پاس بھی اس بات کے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ طویل مسافت طے کرتے پہاڑوں کے درمیان درختوں کی آڑ میں چھوٹی سی مسجد نظر آئی تھی۔ رمز کا پیاس سے برا حال تھا، تبھی وہ پانی کے آس میں یہاں تک پہنچی تھی۔ رمز کی معاونت میں انا بھی بوجھل قدموں سے آگے بڑھی تھی جب پتوں کے چرچرانے کی آواز پہ وہ چونکی تھی، شاید کوئی ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔
انا کو ٹینشن ہوئی کہ موزہ اور دلہام تو نہیں چلے آئے۔ رمز کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، جبھی وہ دونوں برف کی چادر میں ڈھکے درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ سامنے ہی سر سے پیر تک لمبا اوور کوٹ پہنے ایک شخص آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ انا کھڑی ہونے لگی تھی جب رمز سے اسے کھینچ کے واپس بیٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمیں آرجے کا گھر ڈھونڈنا ہے، شاید کوئی انا، میں اس شخص کو جانتی ہوں، یہ آرجے کا ساتھی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے وہاں۔ رمز نے اس کے سر پہ گویا بلاسٹ کیا تھا۔ انا کو یقین نہیں تھا کہ منزل اتنی آسانی سے مل سکتی ہے۔ وہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتے درختوں سے جھانکتے سفید گنبد میں گم ہوا تھا۔ وہ مسجد کیوں جا رہا ہے؟ انا الجھی نظروں سے رمز کو دیکھنے لگی تھی۔ ایسے لوگوں کو کسی پہ اپنا مذہب ظاہر نہیں کرنے دیتے۔ کیونکہ انا کا سیل بج اٹھا، دل کا سائن اس کی دھڑکن تیز کر گیا تھا۔ درہم انا کی سانس اٹکی تھی، ہوائیں تو رمز کے چہرے سے بھی اڑی تھی۔ انا اب کیا ہوگا؟ ان دونوں کی توجہ شخص سے ہٹ گئی تھی۔ ان کی نئی پریشانی دلہام کی کال تھی۔ پک اپ دا کال ڈیمڈ۔ دلہام کا میسج تک اسکرین پہ چمکا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ انا نے آنکھیں بند کرتے خود کو حوصلہ دیتے کال اٹھائی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کھڑی کرنے لگی ہو؟ انا میڈم بتائیں گی آپ کو کچھ، یوں میری زندگی کا عذاب بن رہی ہیں آپ؟ دلہام کی آواز میں کوئی رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ایک بار فرحان کے معاملے سے نکلنے دو، اس کے بعد یہ رشتہ ختم ہی سمجھو تم۔ انا کی سانسیں چھننے کی تیاری مکمل تھی۔ گھر پہنچو رائٹ ناؤ۔ اگلا حکم صادر کرتے اس نے کال بند کی تھی۔ جانے کیوں دلہام کو یقین تھا کہ اس کی دھمکیوں کے زیر اثر وہ بات مان لے گی، پر انا نے تو سر پہ کفن لپٹا تھا۔ کیا کہا بھائی نے؟ انا کو گمسم دیکھتے رمز نے پریشانی سے پوچھا۔ انا نے رمز کی بوکھلاہٹ دیکھی، دماغ دلہام کی طرف تھا تو دل ویران ہونے لگا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اور رمز کا ہاتھ تھاما۔ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا، اگر بچھڑنا مقدر میں لکھا گیا تو کیوں نہ وہ ایک نیکی کر لیتی۔ انا، رمز ذرا سمیاں سی بولی، وہ شخص باہر نہیں آیا کیونکہ مسجد پہاڑ کے ساتھ نتھی کی گئی تھی، ایسے میں آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا، تو اب تک اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ رمز کی کون سی اس پہ توجہ تھی؟ وہ الجھی ٹھہری تھی۔ انا نے گہری سانس بھرتے قدم آگے بڑھائے تھے، سر ویسے ہی ڈھکا تھا، پر ذرا سا کوٹ اوپر کو سرکاتے لبوں سے ناک تک مسجد ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ مسجد کیا تھی؟ صرف 3 افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ وہ مایوسی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی۔ شاید وہ شخص دلہام کی کال کے دوران ہی نکل گیا تھا کہیں۔ مایوسی کی ایک گہری چادر تھی ہر طرف، رمز کا خود پہ اختیار نہیں رہا تھا۔ تبھی وہ رونے لگی تھی۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ بھی گنوا تھی۔ پانی کی پیاس تک احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب انا کی نظر برف پہ کچھ کھوجنے لگی تھی۔ رمز، یہاں آنے کے نشان تو ہے، پر واپس جانے کے نہیں، ایسا کچھ۔ انا کا ماتھا ٹنکا تھا۔ کیوں؟ رمز الجھی تھی۔ کیونکہ وہ شخص یہاں سے گیا ہی نہیں۔ اور آگے کچھ لمحے خاموشی سے خاموش ہوتے اس نے مکمل جائزہ لیا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ شخص کہاں گیا۔ کیا وہ بھوت تھا؟ رمز کی سانس اٹکی تھی۔ تمہیں اس وقت مذاق سوچ رہا ہے رمز؟ وہ شخص آگے کیا گیا؟ نہیں، اس کا مطلب وہ یہیں آگے رک گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سفید ماربل پہ بیٹھتے گہرائی سے اس کا جائزہ لینے لگی تھی، جہاں پہ کسی قسم کے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ انا کا سیل ایک بار پھر بج اٹھا تھا۔ خوف کے مارے اسے نے بنا دیکھے کال کاٹ دی تھی۔ دلہام حد درجہ پریشان تھا، کہیں اس سے کامیابی کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈے کیسے؟ دورے بھی جو اسلام آباد پاگلوں کی طرح فرحان کی ایک جھلک دیکھنے کو ڈگر نگر اس کی تصویر لیے کھوج رہا تھا۔ موسیٰ کو کچھ کلو ملا تھا، پر وہاں سے خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ سر پر فرحان بی بی اور رمز بی بی کافی دیر سے گھر سے نکلی۔ گارڈ کا کہنا ہے اس نے آس پاس کافی جگہوں پر دیکھ لیا، پر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ موسیٰ نے دلہام کے سر پہ آخری بلاسٹ کیا۔ دلہام کا دل چاہا وہ ان دونوں کو ہی شوٹ کر دے۔ کہاں فرحان کی ٹینشن؟ انا سے اسے کبھی عقل مندی کی امید نہیں تھی، تبھی وہ بار بار کال کر رہا تھا، پر انا کا کال کاٹنا اسے سیخ پا کر گیا تھا۔ موسیٰ، لوکیشن ٹریس کرو انا دل کی۔ وہ غصے میں بھی دوسروں کے سامنے اسے ڈیگریڈ نہیں کر پایا تھا۔ موسیٰ فوراً الرٹ ہوا تھا۔ ادھر انا اور رمز ایک خوف میں جگڑی تھی۔ ایک دم سے وہ جگہ پرسرار سے نظر آنے لگی تھی۔ انا اس مسجد کی ساخت کا پورا بھرپور جائزہ لینے لگی تھی۔ دوسری طرف دلہام کی کال پہ اتنی بیزار تھی کہ سیل آف کر دیا تھا۔ انا، مجھے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں جانا چاہیے یہاں سے، رمز لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ سوچو رمز، اگر فرحان یہاں ہوئی تو
अना की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। रम्स की आंखें एक बार फिर से अश्कबार हुई थी। क्या हमें भाई को उस जगह के बारे में बताना चाहिए? आई मीन नहीं रम्स, अब जो करना है हमें ही करना है, बी प्रूफ। वो उसका कंधा थपथपाते बोली, पर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। जब रम्स की नज़र मस्जिद के एक कोने से बर्फ़ की तह में थोड़ी मिट्टी गिली नज़र आई थी, पर उसे नॉर्मल समझते सर झटक गई थी। हमें इस जगह को वॉश करना होगा। अना से जब कुछ ना बन पाया तो दोनों फिर से झाड़ियों में जा छुपी। रात के साए गहरे पड़ने लगे थे। इन्हें इंतज़ार करते तकरीबन आधा घंटा हुआ था जब एक बार फिर से मस्जिद से की तरफ से आता वो शख्स दिखाई दिया था। वो दोनों सांस बंद किए बैठी थी, पर इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके पीछे दो और आदमी भी थे जो सियाह लिबास में मलबूस थे। जंगल की तरफ बढ़ते हुए लोग इसमें गुम हो गए थे। अना कुछ है यहाँ ऐसा जो हमारी आंखों से उजल है। रज बाकायदा रो पड़ी थी, जो मुसलसल ही वो काम कर रही थी। अना का सर भी फटने लगा था। क्या हो रहा है ये? दिल्हम की आवाज़ में अना को झटका लगा था जो इसके सर पे ही ठहरा था। वो मैं हम शट अप, तुम्हें एक बार का कहा समझ नहीं आता कि दिल्हम के लफ्ज़ कहीं खो गए थे। जब अना हर सितम मिलाए रोते हुए इसके सीने से लगी थी। आई एम सॉरी दिल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने फरहान को तकलीफ दी, मैं इसे ढूंढना चाहती। दूर दिल्हम ने इसे पीछे किया। घर चलो तुम लोग। कुछ भी कहे बगैर वो वापस जाने को मुड़ा था। मूसा भी इसके इसी का हम कदम था, जबकि कुछ दूर ही दिल्हम के गार्ड्स ठहरे थे। अना और रम्स अपनी जगह से टिस से मिस नहीं हुई थी। हमें लगता है शायद हम परान तक पहुंच गए हैं। अनहा ने गुलगीर अंदाज में कहते मूसा गुलाम को अच्छा खासा शौक दिया था। एक और ट्रैप करना क्या चाह रही हैं आप अना मोहतरमा? दिल्हम ने सख्त दांत पीसे इसका बस नहीं चला था, उसका गला दबा दे। रम्स तो दिल्हम के सामने नज़र नहीं उठाती थी, जबकि मूसा की निगाहें इसी पे जमा थी। आया वो कुछ कहती या चुप रहती, या मस्जिद में कुछ है? आई मीन अना इसे सब बताने लगी थी। दिल्हम को इसकी बात फजूल बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं लगी थी। इसे लग रहा था कि वो उन दोनों को गिल्ट इन्हें इंदा शर्मिंदा कर रहा है। वो कुछ भी बोले जा रही हैं खुद को क्लियर करने की खातिर। सर एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। मूसा की बातें अना को ठारस बंदी थी। दिल्हम के इशारे पे गार्ड मस्जिद के आसपास से बर्फ हटाने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं था जो मशकूक लिए, इसलिए दोनों की बात को बेबुनियाद करते इसने वापसी का कहा था। जब एक बार फिर अना भागते हुए दोनों दोनों इस पथरीली मिट्टी पर बैठी थी। ये ज़मीन, मेरा मतलब है ये ज़मीन तो है पर हकीकी नहीं। अना की बात सुनते दिल्हम का दिल चाहे से पास कहीं घाई में दिखा धक्का देते, जबकि मूसा इसके बराबर पर बखौर एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। अना सच कहती, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई मसनूई आर्किटेक्ट की गई पत्थरों और मिट्टी से बनी कुछ हिस्से पर मौजूद दरवाजे नुमा जगह थी, जिसे थोड़ी सी कोशिश के बाद उठाया गया तो अंदर जैसे नया जहान आबाद था। वो बेसमेंट का हिस्सा था, वो मुकम्मल रोशनियों से भरा था। बाबा आप इन दोनों को लेके जाएं यहाँ से। दिल्हम के सर से दर्द की ठेस से उठने लगी थी, जबकि दिल की धड़कन भी मामूल से हट के तेज थी। अगर अना और रब्स का शक सही हुआ, अगर ये ठिकाना आर्ची का हुआ, तो फरहान क्या वो ठीक थी? तकरीबन इसकी गुमशुदगी को 6 घंटे गुजर चुके थे। इधर रम्स और अना भी हाथ मसलते फरहान की सलामती के लिए दुआ मांगने लगी थी। नहीं, हम फरहान के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। अना ने साफ इनकार किया तो दिल्हम को एकदम गुस्सा आया था। ओ तो इस वक्त ये मोहब्बत का आती जब आप मोहतरमा की मौत का सम्मान कर रही थी। दिल्हम का लहजा जहर में डूबा था। और आना बीबी, इस बात की क्या गारंटी कि फरहान बीबी यही है? कहीं न कहीं मूसा भी यही चाहता था कि वो और रम्ज़ यहाँ से चली जाए, तभी दिल्हम का साथ दिया था। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएँगे। अना की ज़िद पे दिल्हम माथा मसलने और होठ चबाते अपने एग्रेशन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा था। फिर अना के कंधों पे हाथ रखते इसे अपने सामने किया। देखो, अगर तुम वाक़ई में फरहान की खैर-ख्वाह हो, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी सूरत में पहले तुम्हारा गला घोटूँगा, इसके बाद कुछ और सोचूँगा। इल्हाम ने खुद को काम रखने की कोशिश की, पर वो लड़की इसके टेम्पर के लिए इम्तिहान थी, जिसके होते कोई शख्स नॉर्मल नहीं रह सकता था। अना ने कुछ देर इसकी आंखों में देखा और बगैर वापसी के लिए कदम उठाए थे। रंस ने एक नज़र मूसा को देखा, जो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा होते को देख पीठ मुड़ गया था। वो दोनों ही गार्ड बाबा के हमरा आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से दूर होते गाड़ी में जा बैठी थी। गार्ड बाबा प्लीज़ हमें यहीं रहने दें। अना आंखों में आंसू भरे मन्नत भरे अंदाज में बोली थी। देखिए बेटी, दिल्हाम बाबा बहुत नाराज़ हो गए हैं। फरहान बीबी जहाँ होंगी खैरियत से होंगी, लेकिन ऐसे में आप लोगों को ज़िंदगी को रिस्क में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। अना ने इस तरफ देखा था जहाँ वो सब शायद अंदर चले गए थे। नहीं बाबा, आपको आपके बच्चों का वास्ता, आई प्रॉमिस हम आगे नहीं जाएंगे, पर यहीं पर ही रहेंगे, बस हमें यहीं रहने दें। अना के साथ साथ रम्स भी शामिल हुई थी। गार्ड बाबा खामोशी से इसे देखने लगे थे।
मूसा और दलाम सहज के कदम रखते सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। शायद वहाँ कोई पार्टी चल रही थी। जब ही बेमहंग म्यूजिक पर करीब आते पता चला था म्यूजिक नहीं, कुछ मखसूस किस्म के मंत्र थे जो पढ़े जा रहे थे। इंतहाई सुस्त रवि से वो इस हॉलनुमा कमरे की तरफ बढ़े। अगला लम्हा खून खुला लेने वाला था। लूसीफर के मुजस्मे के सामने तख्त पे पड़ी वो लड़की कोई और नहीं, परहान नहीं थी, जो मुकम्मल सियाह लिबास में मलबूस बेजान सी पड़ी थी, जबकि खून की पतली सी धार इन सियाह कपड़ों से होती कतरा कतरा ज़मीन पे गिर रही थी। दिरहम का दिल बहुत से खदशों में गिरा था। कहीं परहान आगे की सोच इसका खून निचलने को काफ़ी थी। दिलहम को कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या करे। बज़ाहिर आंखें बंद किए लूसीफर के सामने झुके वो लोग भी कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। सर, मूसा ने आगे बढ़ने की इजाज़त चाही थी। दुल्हा ने सख्ती से आंखें बीची थीं। तभी गार्ड्स ने अंधाधुंध फायर खोल दिए थे। जब तक कि वो लोग होश में आते इनके कई आदमी औंधे मुंह ज़मीन पे गिरे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मंदिरों का व्रत आरजे के लिए रखा हुआ गया था। वो अगली सिफ में मौजूद था। इसने पीछे मुड़ के देखा तो आंखें हैरत की ज्यादती से फटने को थी। इसके आधे साथ अधमुरे ज़मीन पे पड़े थे, जबकि बाकियों में हड़बड़ सी मची हुई थी। इन राग लापते सिरों में इंसानी चीखों की आवाज़ दब रही थी। अंदर क्या हो रहा होगा। रम्स अना परेशानी से देख रही थी, जो बंद आँखों से मुसलसल दुरूद शरीफ का व्रत कर रही थी। पुलिस सायरन की आवाज़ पे वो लोग चौंके थे। मूसा ने दलाम के डीएसपी दोस्त को अंदर दाखिल होते सबसे पहले यहाँ की सिचुएशन बताई थी। इन्हें इस चीज़ का शक था कि अगर ये फरहान न सही पर कुछ न कुछ तो मखसूस काम यहाँ चल रहा था। गार्ड बाबा ने आगे बढ़ते पुलिस की मामलत की थी। अरे वाह दिल्हम बग, आखिर तुम हमारे सराय चले ही आए हो। गुड गुड टू सी यू मेरे यार। आज ये खुश दिली से इसकी तरह बड़ा था जैसे दोनों में बड़ा याराना हो, जबकि दिल्हम की नज़र फरहान पर टिकी थी। वो जब से आए थे फरहान के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। आज इसकी इसकी नज़रों का मफहूम समझते कहकमा लगाते हंसा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इंतहाई खबासत भरे अंदाज में कहते आरजे ने दिल्हम को इशारा किया था। इसकी रगों में दौड़ता खून फिशार बना था। वो चील की मान आरजे पे झपटा था। आरजे बिल्कुल भी इससे अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। दूसरे लम्हे में ज़मीन बोझ हुआ था, जबकि दिल्हम दीवाना वार इसके मुंह और सीना वार पे हमला कर रहा था। मूसा और जो इसके साथियों की ठुकाई में मसरूफ था, भाग के बाहर आरजे को दिल्हम की गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगा था, क्योंकि वो अगर इसे मर जाता तो शायद ये इसके गुनाहों की आम सज़ा होती। इसी वक्त पुलिस की भारी नफरी अंदर दाखिल हुई थी। मूसा दिलाम को धक्का देते आरजे को अपनी गिरफ्त में ले गया था। जो भी था पर्सनल अटैक शायद दिलाम के सियासी के करियर पे मनफी असरात मरतब करता। पुलिस ने मिनटों में इस जगह को कब्जे में लिया था। दिल्हम ने चादर उठाते फरहान को उड़ाई थी और इसे ली सीढ़ियों की तरफ भागा। मूसा भी इसके पीछे भागा था। वो जो गार्ड बाबा के जाने से दोबारा इस मस्जिद नामी जगह के करीब आ रही थी, दिलाम की गिरफ्त में एक वजूद को देखते इसकी तरफ भागी थी। मूसा अना को सामने देखते दिलाम के कदम थमे थे। वो फरहान का चेहरा देखना चाहती थी। दिलाम की धाड़ पे अपनी जगह रुकी थी। मूसा ने अना के सामने हाथों की आड़ बनाई थी, जबकि दिल्हम इस पे कहर भरी निगाह डालते फरहान का बेजान वजूद गाड़ी में डालने लगा था। अगले चंद मिनटों में वो जगह खंडर बन चुकी थी। पुलिस ने इसे दस्ती बम से उड़ा दिया था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर इस वक्त घमसान की जंग पेश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का बेग लगाम मीडिया हर चीज़ को हाईलाइट करते दिल्हम बख्त की फैमिली पर्सनल की धज्जियाँ उड़ा रहा था, क्योंकि बबली पैलेस पे ये कई बार अना और आरजे को एक साथ देखा गया था। पर फरहान की गुमशुदगी को भी अपने मतलब का रंग देते वो लोग दिल्हम के लिए एक इम्तिहान बने हुए थे। ऐसे में एक शख्स ही था जो उसके शाना बशाना हर एक चीज़ को जस्टिफाई कर रहा था। दुरेद अभी तक रम्स और अना के कारनामों से अनजान था, और उसे उस वक्त इस वक्त कुछ चाहिए था तो वो फरहान की ज़िंदगी, जिसकी डॉक्टर ने बहुत कम उम्मीद दिलाई थी। इसके लिए भी मीडिया के अजीब और गरीब सवाल किसी मायने से कम ना थे। मूसा मीडिया के तूफान को पीछे करते आए तो अना ने फरहान से मिलने की जिद पकड़ ली थी। वो एक दुनिया को समझा सकता था, पर दिल्हम की अनादत को समझाना इसके लिए नामुमकिन था। फिर भी वो दलाइल पेश करने में मसरूफ़ था। जब दिल्हम इसे अना से उलझते देखे इसके पास आया था, तुम जाओ मूसा और मैं जब तक ना हूँ फरहान के रूम के सामने से हटना मत। तुरेद को तो अपना होश नहीं, वो क्या दोस्तों और दुश्मन में पहचान करेगा। मूसा को इंस्ट्रक्शन देते दिल्हम ने तंजिया नजरें अना पे जमाते मूसा को कहा तो वो फौरन वहाँ से हट गया था।
दिल में। अना ने फिर से सफाई देनी चाहिए थी जब वो इसे कलाई से थामे हॉस्पिटल से बाहर आया था और गाड़ी में बिठाते साथ ही घर लेकर आ गया था। पहाड़ी की ऊंची नीची ढलानों पे जितनी फास्ट इसने ड्राइविंग की थी, अना को खाइयाँ मौत का मस्कान सुनाई दे रही थी। रम्स ने रोती पिलकती अना और दहशत बरसाते तासुरात दिलाम को देखते को कोना पकड़ा था। वो नाक सीधी में चलते हुए उसे कमरे में लाते रूम लॉक कर गया था। बिना कोई रहम खाए बेड पे धकेला था। क्या देखने आई थी तुम वहाँ? हाँ, अब कोई नई चाल नई साजिश करनी रह गई है दिलाम वक्त को बर्बाद करने में। बताओ, बच्ची कुची सांसें छीनना चाहती ना तुम फरहान की, क्योंकि तुम कभी शाह बख्त की हवेली के मकीनों से मोहब्बत कर ही नहीं सकती हो। वो गुस्से में भगाता शर्ट के आस्तीन में कोहनियों तक चढ़ा गया था। मैं मानती हूँ मैं भटक गई थी, मगर मेरा अटेंशन फरहान को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। दिल आई श्योर मैं बताना चाहती थी, मगर इस रात आप सुनने में माइल ही नहीं थे। कुछ तो मैं। अन्ना की आवाज़ रुन गई थी। दिल्हाम ने कांटदार निगाहें इस पर डाली। एक ही दिन में वो सभी तकरीबन बहुत से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि इनके चेहरे ही मुरझा गए थे। दिल्हाम, मैं तुम हॉस्पिटल नहीं आओगी ना ही रम्स। इस मामले से निकलते मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या करना है, क्योंकि अब ये तो तय है कि मेरी लाइफ में कम से कम मज़ीद धोखाबाज लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्हाम इसे तकरीबन सज़ा सुनाते फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा था। इन गुजरे 24 घंटों ने पूरे जिस्म को फूड़े की मानन कर दिया था। वो औंधे मुंह बेड पे गिरते रोने लगी थी। गर्म बिस्तर ने इसकी थकान को समेटा तो वो रोते रोते ही हर तरफ से गाफिल होते सो गई थी। दिलाम खुद को रिलैक्स करने के लिए तवील शावर लेते वो बाहर आया तो वो बेसुध हो सो रही थी। सांसों की रिदम में पैदा होते हल्की आवाज़ इसके गहरे नींद में होने का पता दे रही थी। एक असाब शिकन जंग के बाद वो इन लोगों की ज़िंदगी में शायद सुकून दर आया था। दिल्हाम ने सेल उठाए मूसा को मैसेज किया था। मीडिया का मुंह बंद करवाने के साथ साथ दुरैत को अना और रम्स की हरकतों के बारे में ना बताने को कहा था। इसके ओके के मैसेज के साथ फरहान की बेहतर होती तबीयत की तसल्ली दी गई थी। शायद वो चाहता था कि दिल्हाम कुछ वक्त खुद को आराम दे। सोफे की पुश से टेक लगाए वो यकटक अना को देखे जा रहा था। जितना इस लड़की ने सकत सताया था, इस पे वो इसे मुसलसल जलील कर रहा था, पर वो ये काफ़ी था इसकी सज़ा को। अगर वो उसकी सज़ा तवील करता तो क्या खुद इसके बगैर रह पाता? अपनी एहतसाब भी ज़रूरी हो गया था। इसने अना को इतना ट्रस्ट नहीं दिया था कि वो इससे अपनी उलझनें शेयर करती। अपनी ज़ात को मज़ीद तानाजनी से बचाने की खातिर इसने औरत की मुजस्सिस तबीयत से खेलने की जो बसात बिछाई थी, तबाही लाई थी। सोते में अना ने सिसकी भरी थी। वो उठते हुए इसके पास आया था। इसकी कशिश अपनी जानिब खींचने लगी थी। तभी वो दाएं हाथ की उंगलियां उसके रुखसारों से मिसकी थी। न जाने वो उसके चेहरे से आंसू के मिटे मिटे निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो इस जालिम लड़की की मोहब्बत से इनकारी होते हर नाता तोड़ने का, पर इतना आसान कहा था। मोहब्बत के पैरोकारों के लिए अपने मरकज महवर की कशिश सकल से हटता। दिल्हाम के हाथ अना के उलझे बाल सुलझाने लगे थे। इसकी आंखों में नमी भरने लगी थी। बहुत बुरी हो तुम अनादिल, बहुत बुरी। ऐसा भी कोई करता है कि अपनों की तकलीफ का सामान? नीम सरगोशी में ढली आवाज़ में वो कसमसाई थी। बावजूद तुम्हारी हर खता के मेरी मोहब्बत इतनी आला ज़रूफ है अनादिल कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन कुछ तो ऐसी सज़ा बनती है। तुमने अपने दिल को तोड़ा है। इस पर नज़र जमाए दिल्हाम ने अपना आखिरी फैसला सुनाया था। वो हॉस्पिटल जाने के लिए खड़ा हो गया था। अगर एक बार अना आंखें खोल के अपनी मोहब्बत में आज इस इंसान को देख लेती तो इसके पाँव गिर के हर खता भुलाने की दरख्वास्त कर लेती। इतना सब कुछ हो गया था और तुमने हमें बताना गवारा नहीं किया। और ये आरजे कौन सी दुश्मनी निकाली है इसने मेरे मासूम बच्चों से? इस वक्त सभी हॉस्पिटल में दिल्हाम और मूसा की पेशी लगाए बैठे थे। एक सच छुपाने की खातिर इन लोगों ने कितने मन घड़त झूठ बोले थे कि दिल्हाम से किसी बात का बदला लेने की खातिर आरजे ने दुरैत और फरहान को अगवा किया था, जिसकी वजह से फरहान का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था, जबकि फरहान कटी कलाइयों का जवाब देना भी मुश्किल था, जो मासवाद दिल्हाम और दुरैत के किसी ने नहीं देखी थी। वो लोग तकरीबन अपने देवता के सामने इसकी कुर्बानी दे चुके थे, पर मुआवजे भी कभी रौनुमा हो जाते हैं जो ज़िंदगी की उम्मीद लाए थे। फरहान प्रेग्नेंट थी, दुरैत भी नहीं जानता था और दिल्हाम ने भी डॉक्टर्स को सख्ती से मना कर दिया था कि इस बात से वो कुछ भी दुरैत या फरहान को नहीं बताएंगे। उसके होश आते ही जैसे वहाँ ज़िंदगी दौड़ गई थी। बीजान और दादा दान की ज़िद पर इन्हें प्राइवेट जहाज़ पे ही हवेली शिफ्ट कर दिया गया। दिल्हाम अपने ज़रूरी काम निपटाने में मसरूफ़ था, जबकि मूसा रम्स अपने आने वाली ज़िंदगी के फैसलों से अनजान थे। दिल्हाम ने इन दोनों को ही हवेली वालों के सामने आने से रोक लिया था, इसलिए वो इस वक्त मूसा की आर्जी पनाहगाह में थे। फरहान और दुरैत के मामला से फारिग होते इसलिए इन दोनों को बुलवाया था। अना, क्या तुम्हारे भाई से कोई बात हुई है इस मामले
معاملے پہ رمز پریشان تھی، نہ جانے دلہم کیا فیصلہ کرنے والا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی رمز، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، روم بھی چینج کر لیا ہے۔ گویا اس نے اپنی سزا کا خلاصہ کیا تو رمز گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ دلہم اور موسیٰ کے آنے سے ان کے مسترد دل پذیر پریشان ہوئے تھے۔ دلہم نے ایک فائل ان کے سامنے رکھی تھی۔ موسیٰ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، رمز جو نگاہوں سے اس کے تاثرات جاننا چاہتی تھی جو بالکل سپاٹ تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تمہارا اور موسیٰ کا ڈائیورس کروا دیا جائے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ محبت کے بغیر جینے کا تصور کیسا ہوتا ہے۔ دلہم کا سپاٹ انداز نہ صرف رمز کی جان نکالنے کو کافی تھا بلکہ انا بھی ساکت ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس بات سے انجان تھا کہ رمز ایک محبت کی خاطر اتنا کچھ کیا اور اس کا بھائی وہی محبت اس سے چھین لے گا؟ ڈائیورس کے بعد موسیٰ تمہیں حویلی چھوڑ دے گا، آگے کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ ہر رعایت سے آری انداز بے رحمی سے سنگھاسن پہ بیٹھا شخص دیکھتے انا کا مزید چپ رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے موسیٰ اور رمز سے پوچھا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انا کے چلانے پہ دلہم نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ سائن کرو رمز۔ خونخوار نگاہیں انا پہ جمع اس نے رمز کو کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلہم کے ہاتھ سے پین تھامتی انا نے سامنے پڑے کاغذات اٹھاتے کئی ٹکڑوں پہ تقسیم کیے تھے۔ خود اگر محبت نبھانی نہیں آتی تو دوسروں کی محبت میں قیدیوں کا رول ادا نہ کریں۔ آپ اور موسیٰ بھائی، کیا آپ خود کو مرد کہتے ہیں جو اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا؟ کب تک اپنے مالک کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی جینے سے انکاری ہوں گے آپ؟ اب تو آنکھیں کھولیں، کیا رمز سے ناتا توڑ کے خوش رہ لیں گے آپ؟ وہ باغی فطرت لیے شعلہ جوالہ بنی موسیٰ کے سامنے کھڑی تھی۔ دلہم کو اب پرانی انادل کا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں سر کے اینکس نہیں جا سکتا، رمز بی بی سے شادی کرنے کا فیصلہ ان کا تھا اور آگے بھی جو وہ چاہیں۔ موسیٰ کے جواب پہ دلہم کے لب کھلے تھے جبکہ انا اور رمز نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ کاغذات وہ پھاڑ چکی تھی، اب وہاں رکنے کا کوئی خاص میدان نہیں تھا۔ تبھی موسیٰ نے واپسی کو قدم اٹھائے۔ رکو موسیٰ، تم رمز کو حویلی چھوڑ کر آؤ گے؟ اب اس معاملے کو شاہ بخت حویلی والے ہی دیکھیں گے۔ دلہم کی نظریں ہونس انا پہ ٹکی تھی۔ موسیٰ نے اسپات میں سر ہلاتے اجازت طلب نظروں سے دلہم کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رمز بھی جھکے سر سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہے جب وہ آندھی طوفان بنی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آئی ہیٹ یو مسٹر دلہم بخت۔ وہ جو اس کی اچانک آمد پہ چونکا تھا، اس کے الفاظ سنتے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا تم رات کے 2 بجے مجھے یہ بتانے آئی تھی؟ دلہم نے بروچ کا پوچھا تو انا کا دل چاہے اپنا یا پھر سامنے والے کا سر پھاڑ دے۔ تم خود کو سمجھتے کیا؟ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا رمز پہ؟ وہ اس کے سامنے آ ٹکی تھی۔ اس وقت وہ سونے کی تیاری میں مصروف تھا، ابھی غسل لیتے فارغ ہوا تھا۔ اس کے قریب آ کے انا کا چہرہ سرخ پڑا جو اس وقت بنا شرٹ صرف نائٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ کیا تم دونوں کو فرحان پہ ترس آیا تھا؟ دلہم نے الٹا سوال داغا تو انا کی گردن میں گلٹی سے ابھرتے معدوم ہوئی تھی۔ غلطی ہوئی ہے، پشیمان بھی تو ہیں ہم۔ وہ دونوں کی وکیل بنی تھی۔ میری بہنوں کے مسئلے پر مجھ پہ چھوڑ دو۔ تم بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ لائٹ براؤن سوٹ میں ملبوس، شانوں پہ بھاری شال رکھے وہ باوجود ہزار ناراضگی کے دلہم کو ڈسٹرب کر گئی تھی۔ تبھی اسے وہاں سے نکلنے کی خاطر تیز آواز میں بولا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا رمز کے ساتھ دلہم۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں، تمہارا انجام بھی اس جیسا نہ ہو، اس لیے یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ دلہم نے اس کا باہر کا راستہ دکھانے کو باقاعدہ اشارہ کیا تو اس کے ضبط نے دامن توڑا تھا۔ اسے روٹھا صنم بنانا تھا، تبھی روتے اس کے سینے میں اپنا پرانا مقام ڈھونڈنے لگی تھی، پر دلہم اسے جھٹکتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ دیکھتی اپنی حرکتوں پہ مزید پشیمان ہوئی تھی۔ گاڑی سب رفیع سے وادیوں کا سفر طے کر رہی تھی جب وقفے سے ابھرتی رمز کی سسکیاں موسیٰ کا سکون برباد کر رہی تھی۔ وہیں اس کی توجہ بھی ڈرائیونگ سے ہٹ آ رہی تھی۔ گاڑی کے رکنے پر اس نے موسیٰ کو دیکھا جو نیچے اترتے آگے بڑھ رہا تھا جہاں مجمع سا لگا تھا۔ کیا ہوا، اتنا رش کیوں ہے؟ ایک ڈرائیور نے اس سے وجہ پوچھی۔ صاحب، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ وہ تو اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا، اکیلا ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، رمز بھی تو ساتھ تھی۔ اس ڈرائیور نے پیچھے جھانکا تھا۔ آپ کے ساتھ فیملی ہے؟ موسیٰ نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تو صاحب یہ راستہ تو کئی دن بھی بند رہتا ہے، آپ قریب کہیں ہوٹل دیکھ لیں۔ وہ مفت کے مشورے سے نوازتا وہاں سے نکل گیا تو موسیٰ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کیا ہوا؟ رمز کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ راستہ بند ہے، ایک جواب دیتے سے دلہم کو کال ملاتے سچویشن بتائی۔ وہ نہ آگے جا سکتے تھے نہ ہی پیچھے کا سفر آسان تھا۔ تبھی درمیانی راہ نکالتے پہاڑوں کے کچے راستوں سے گزرتے وہ اس کے ساتھ ایک مقامی ہوٹل میں آیا تھا۔ اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنے اسے ایک ہی روم بک کروانا پڑا تھا۔ کمرے میں آتی رمز کو گونا گو سکون کا سکون ہوا تھا۔
बाहर की सर्दी हड्डियों को भी मुंजमद करने वाली थी, जबकि मूसा के सामने एक नई परेशानी थी। वहाँ पर सिर्फ एक बेड के सिवा कुछ भी ऐसा न था जिसमें वो रात गुजार सके। भूख लगी है मुझे, रम्स की रूहानी सी आवाज़ पे वो सर इस्बात में हिलाते इसके लिए खाना लेने गया था। वापसी में खाने के साथ एक और कंबल भी इसके पास थी। रम्स ने इस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। खाना खाते हुए लेट गई थी, जबकि शायद एहतजाजन खामोशी इख्तियार रखी या फिर दिल्हाम वक्त का फ़ैसला कबूल कर लिया था। मूसा को उसकी गहरी चुप से एक उलझन हो रही थी। वो शर्मिंदा थी, पर तब भी वो इसे दस्तबा नहीं होना चाहती थी, और अब अचानक चुप इसके सोने का यकीन करते इसने खुद को थोड़ी-सी जगह एडजस्ट किया था। आँखें मूंदे तो पलकों पे कुछ मंज़र चलने लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम रम से ये रिश्ता निभाओ। मूसा के सामने बैठे अदनाम ने इसे शौक ही तो दिया था। इसे भला अपनी सज़ा ही समझ लो कि बहरहाल ग़फ़लत तो तुमने भी तो अपनी ज़िम्मेदारी से बरती है। अपनी खूबसूरत सज़ा मूसा को तो यकीन ही न था इसकी ख़ामोश मोहब्बत को भी मंज़िल मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दिलाम की बातें वो चौंका था। उसका प्लान सुनते अब्बा मूसा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, जिसमें से रम्स और अना के सामने झूठी डाइवोर्स का नाटक करना था ताकि वो रम्स का रिएक्शन देख सके। पर अना ने ये नौबत ही नहीं आने दी थी। तभी दिलाम को अपना प्लान बदलना पड़ा था। इसने बीजान और दादा जान को एतमाद में क्या सब कुछ बता दिया। इन्हें भी मूसा की हैसियत से ज़्यादा ईमानदारी ने मुतासिर किया था, जिसने कभी रम्स से जायज़ रिश्ता होते हुए भी अपनी हदूद नहीं फलांगी थी। अपने कंबल में सिमटी रम सर्दी की शिद्दत से सिमटी इस मज़ीद इसके करीब हुई तो वो ख़यालों की दुनिया से बाहर आया था। गुलाबी कंबल चेहरे से थोड़ा-सा हटा था। वो परेशान हाल चेहरा नींद में भी अपनी दास्तान सुना रहा था। मूसा को अंदाज़ा होता कि वो मज़बूत जज़्बात की मालिक लड़की वाक़ई हुई थी। बेइख्तियार इसका हाथ इससे चाँद को छूने की ख़्वाहिश कर बैठा था। गुर्बत तो पहले भी कई बार रही थी, पर यकीन की डोर कभी नहीं थामाई गई थी, और आज यकीन की डोर हाथ में थी तो दिल के तकाज़े इनके दरमियान रिश्ते की नज़ाकतों से आगाह करने लगे थे। वो अपने चेहरे को एक हाथ की हथेली पे टिकाया, दूसरे हाथ से चाँद की मुकम्मल झलक देखने को हल्का-सा कंबल सरका गया था। वो रोशन चेहरा इसके सामने था। कितना रोई रही थी वो पूरे रास्ते, जबकि इसके तमाम इख्तियारात होने के बावजूद भी ज़ब्त करके बैठा बैठा रहा था। बेचैन नींद सोती रम्स की आँख मूसा के लम्ब से खुल गई थी। मूसा इतनी गुर्बत पे इसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था कि मनचाहा शख्स पहली बार खुद से इतना करीब था। मूसा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके लबों पे जमाया। आज इसे अपना नाम बेहद प्यारा लग रहा था। क्या ये ख्वाब मैं आँखों में आँखें खोलूँ और सब ख़त्म, बहुत दूर चले जाओगे तुम मुझसे। वो हकीकत में आई थी जिस शख्स की खातिर वो अपनों से बहुत दूर चली गई थी, आज वो भी जो दूर जाने वाला था। नहीं मेरी जान, यही सबसे बड़ा सच है जो आप इस वक्त देख रही हैं। मूसा ने अपनी पेशानी को उसकी नाक से रगड़ते अपने लम्स की ताज़गी बख्शते इसकी पुरतिश उलझी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस करते कहा था। रम्स की आंखों से एक बेयकीन पतझड़ की लड़ी लगी तो मूसा ने बचा कुचा फैसला समझते इसे अपने बेहद करीब कर लिया था। वो बेतहाशा रोने लगी तो मूसा ने इसे अपने कशादा सीने में समोते रोने दिया था। मैं मर जाऊंगी, मुझे ये गिल्ट जिंदा नहीं रहने देगा कि मैं फरहान की ज़िंदगी से खेला, अपने भाई की खातिर मोहब्बत को ख़तरे में डाला और ख़ुद भी खाली हाथ रह गई। मुझे मोहब्बत रास ना आई, मुझे फरहान और दुरैद की मोहब्बत की आग लग गई। मूसा मूसा को उसके अल्फाज दुखी करने लगे थे। इसे एकदम से खुद पे गुस्सा आने लगा। अब ऐसी भी क्या सज़ा देनी, जो हुआ किस्मत में ऐसे ही लिखा था। इसने दिलाम वक्त के चक्कर में लड़की को मज़ीद दुखी कर दिया था। आपको एक बात पता है रम्स इसके सांसों को लबों से चूमते मूसा ने सरगोशी की तो इस बात पे ध्यान नहीं दे सकी। मूसा ने आज इसका नाम रिवायती ताज़ुन के बगैर लिया था। वो सर उठाए इसे देखने लगी थी। आप बहुत बुरा रोती हैं, ये दिल दुखने लगा है आपको रोते देखकर। मूसा की बात सुनते इसे लगा वो उसका मज़ाक उड़ा रहा है। इसने गुस्से में इसके पहलू से हटना चाहा, पर मूसा ने पहली बार मुकम्मल इस्तेहाक जताते इसे दोबारा अपने पास गिराया था। रम्स का दिल बुरी शिद्दत से धड़का था। इसे मोहब्बत में कुछ बदलाव सा नज़र आ रहा था। मूसा वो भाई शीश साले साहब की तो बात ही ना करें। अब इस वक्त सिर्फ ये देखें तन्हाई बहुत कुछ डिमांड कर रही है। मूसा के लबों पे शरीर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। रम्स बौखलाई थी क्योंकि कैसी डिमांड, वो इतनी बच्ची नहीं थी कि इन आँखों के मैंने क़ियास अंदाज न समझ पाती, तभी अनजान बनी थी। शायद आपको इस कंबल में सर्दी लग रही तो अच्छे शौहर होने के नाते मेरा हक बनता है आपके आराम का ख्याल रखने का। जो मैंने अंदाज में कहते इसने रम्स के गिर्द अपना कंबल लिपटा तो इसकी धड़कनें सेकंड में दौड़ने लगी थी। मूसा ये सब क्यों, मेरा मतलब है तुम तो मुझे। मूसा ने इसके लबों पे उंगली रख दी, इससे मज़ीद कुछ बोलने से रोका था।
चलो एक और दुनिया में तुम्हारे साथ चलते हैं, जहाँ हालात कुछ भी हों मगर हम साथ रहते हों, जहाँ मौसम कोई भी हो, जुदाई का ना हो लेकिन जहाँ जान भी तुम हो, जहाँ सूरज, हवा, रोशनी, खुशबुओं का रंग तुमसे हो, जहाँ पर दिल धड़कने का हर एक एहसास तुमसे हो, जहाँ पर मेरे जीने की सारी आस तुमसे हो। चलो एक और दुनिया में तुम्हारे साथ चलते हैं। वो भी यकीनी से मूसा को तकी जा रही थी। आंसू एक बार फिर साथी बने तो मूसा ने समेटते इसे खुशियों भरे लम्हों की ईद सुनाई थी। वो मशहूर था, इसकी मोहब्बत, खामोश मोहब्बत को ज़बान मिल गई थी। आगे क्या होना था वो दिलाम वक्त ने संभालने का ज़िम्मा लिया था। रम्स पुरतकिश्ती के मौज़े और दुआएं ऐसी भी रंग लाती है। रात इनके मिलन पे मुस्कुराती गगन पे कहकशां के साथ जश्न मनाने लगी थी। चाँद ने एक बादल के टुकड़े की ओट में छुपते कहकशां को जगमगाने का मौका दिया था। फरहान नम आँखों से वो रिपोर्ट देख रही थी जो इसकी देखभाल को रखी गई थी। नर्स गलती से छोड़ गई थी। दुरैत कमरे में दाखिल होते जैसे मजाल इसके इंतज़ार में था। क्यों तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई दुरैत, क्यों? वो चिल्लाते हुए हाथों पे लगी वी लाइन खींच गई तो खून की एक पतली सी धार इसकी नसों से निकली थी। काम डाउन, व्हाट हैपेंड, कुछ बताओगी तुम? वो उसके दोनों हाथों थामे इसे सहारा देते बोला था। दुरैत मेरा बच्चा दुरैत। वो फरहान अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। दुरैत को इससे भी बढ़ के शौक लगा था। वो इसके शाने पर सर टिकाए रोने लगी थी। बी ब्रेव फरहान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वरना। दुरैत की बात पर इसने गुस्से में सर उठाया। वो रिपोर्ट इसे पकड़ाई थी जिसे देखते दुरैत के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए थे। वो इस बात की तस्दीक होते मानो चेहरे से खून निचड़ गया था। इसने फ़ौरन दिलहाम को कॉल मिलाई थी जो अभी भी नाश्ता करने लगा था। दुरैत की कॉल फ़ौरन उठाई थी। हाँ बोलो दुरैत, सब ठीक है ना? फरहान कैसी है? अंदर आती है ना भी फरहान के ज़िक्र पर अलर्ट हुई थी। ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे बताना देना चाहिए था, पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि दरहम अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा था। अना को इनकी बातें समझ नहीं आई थी कि मौजू गुफ्तगू क्या है। वो दुरैत को मुतमईन करता खड़ा हो गया था। दिल ब्रेकफास्ट, वो इसे ब्रेकफास्ट करने का कह रही थी। दिलहाम ने इसे सख्त निगाहों से देखते हाथ उठाए मजीद कुछ बोलने से रोक दिया। तुम्हारी वजह से आज दुरैत और फरहान ने अपना बच्चा खोया, वो खुशी जो इनके इल्म में ही नहीं थी। वो तकरीबन धारते एक ज़ोरदार टेबल को मारते वहाँ से निकल गया था। अना का दिल हौलाया था। एक बार फिर पछतावे ही पछतावे थे मंज़र में। हम वक्त से खुद से मेलो धूल नज़र आ रहा था। आंखें खून छलकाने लगी थी। तभी वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। दिलाम को जो कमरे से वॉलेट लेने गया था, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पर भागते हुए गाड़ी खिड़की से झाँका। अना तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकाल ली गई थी। ओह शिट! बेवकूफ़ लड़की। दुल्हन भागते कदमों से बाहर आया पर इस वक्त कोई और गाड़ी वहाँ नहीं थी। वो ऑफ़िस कॉल करते हुए दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा पर इसका ध्यान के धागे बार-बार अना में उलझे थे। अगर इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा या कुछ भी ऐसा हो गया, आगे की सोच आते इसका दिल बंद होने लगा था। इसने भी तो सज़ा तवील कर दी थी। वो परेशान सा ठहरा था जब इसका सेल बज उठा। दूसरी तरफ की बात सुनते इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। वो फ्रेश सी वॉशरूम से निकली जब मूसा ने फ़ौरन से अपनी कैद में लिया था। मूसा, वो झंझलाई सी भला कहा। इसने मूसा के ये अंदाज़ देखे थे जो बात बेबात शौक जुमले कभी मोहब्बत जितलाते अंदाज़ों से इसका जीना दूभर कर रहा था। ये नाइंसाफ़ी है मैडम, हम दूर थे तो आपको ही शिकायतें थी। सच ही कहा किसी ने दूर की ढोल सुहाने। वो साफ़ इससे चिढ़ा था। वो रम्स रूहान सी हो रही थी। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते क्लियर होते थे या नहीं, पर शायद मूसा को होटल को ज़्यादा पसंद आ गई थी तभी इनका स्टे वहाँ तवील हो चुका था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम कभी-कभी हद कर देते हो। वो खिड़की से बाहर के मनाज़िर पर निगाह जमाए बोली थी। आज शायद फिर से बारिश होगी। ठंडी हवा में गहरी साँस भरते इसने पेशन गोई की थी। बादल तो एक हफ्ते से खूब बरस रहे हैं। ज़मीन की शायद प्यास ही नहीं बुझ रही है। ज़ुमैनी अंदाज में कहते थे रम्स को अपने साथ में लिया था। रम्स का शर्माया ललचाया रूप मूसा को मज़ीद इसका दीवाना बना रहा था। हम हवेली कब वापस जाएँगे? उसने मूसा से पूछा जो उसके शाने पे सर टिकाए हुए थे। मेरा दिल तो चाहता है कभी नहीं जाए। इसने शौक़ी से कहते रम्स के रुखसारों को लबों से मिस किया तो इसे घूरते पीछे धकेलने लगी थी। कुछ ज़्यादा ही शौक़ी हो रहे हो तुम। हाँ, हाँ, आप खुद चाहती थी मैं ऐसा बन जाऊँ, अब शिकायत भी आपको है, कमाल करती हैं बीबी जी। शौक अंदाज़ ने लब सिकुड़े और फासला भी बढ़ा था। मूसा का संजीदा अंदाज़ देखते रम्स का दिल बैठने लगा। मूसा प्लीज़, वो उसके सीने में हाथ समाए तो मूसा के तेवर भी कुछ ठीक हुए थे। बारिश हो रही है। इसकी बोझिल सरगोशियों में रम्स खुद में समेटी थी। अब के हर दिन मोहब्बत की बारिशों में भीगने का था।
नादिल बाँध-बाँध की बोलियाँ बोलते लोगों के दरमियान एक आशना आवाज़ पे वो फ़ौरन मुड़ी थी। दिलहाम को सामने देखते मानो कोई मन्नत बर आई थी। दिल वो ये मैंने नहीं किया, सच्ची टर्न करते हुए ये शख्स खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। अपनी सफाई पेश करती अना को याद आया वो तो इस शख्स की नज़रों में अपना एतबार खो चुकी है, फिर कौन-सा वो यकीन करेगा? जबकि इसकी आँखें नमकीन पानी से लबरेज थीं, वो तेज़ी से जूम को चीरते इसकी तरफ बढ़ा और एक मज़बूत हिसार कायम किए अपनी मौजूदगी का एहसास बख्शा था। इट्स ओके कुछ नहीं हुआ, ओके रिलैक्स। उसे शानों से थामे अपने करीब करते बोला। इतने दिन बादल नाम की नरम आवाज़ ने अना के सर की बाढ़ तोड़ी थी। वो उसके सीने से लगते ही ज़ोर का रो पड़ी थी। दिल का गुबार निकालने को जगह मुनासिब नहीं थी, लेकिन वो उसकी ठाड़स बाँधने को हल्के से इसकी पीठ पे तशफ़ी भरी थपकी दे गया था। वो तो ये चेयरपर्सन तलहाम बख्श की बीवी है, तभी दौलत के नशे में तो गरीब इंसान का ढेला रोक दिया, बल्कि इसे भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझ में से एक आवाज़ आई तो अना ने खौफज़दा निगाहों से दुल्हाम को देखा, जिसके चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था, जबकि मुठ्ठियाँ भींचे वो सामने ही देख रहा था। दिल, तुम ठीक हो ना? तासुरात के बरक्स आवाज़ में नरमी थी, जबकि वो अना की तवज्जो सबसे हटाना चाहता था। अना ने गर्दन अस्पात में हिलाई थी। अरे ये बड़े लोग, इनके लिए आम लोग तो कीड़े-मकोड़े ही हैं। कोई और भी बोला था। अना ने कर्ब से आँखें बंद की थी। चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन लोगों से बात कर कर आता हूँ। इंतहाई नरमी से अपने हिसार से निकालते इसने गार्ड को इशारा किया था कि वो अना को लेके जाए। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए जाने लगी थी। इस वक्त पुलिस भी वहाँ आई थी। अरे बीबी, इस गरीब की भरपाई कौन करेगा? पुलिस को देखते ही भाग खड़ी हुई। एक जज्बाती सा शख्स आगे बढ़ा था। शायद इसे गुलाम बख्त नजर नहीं आया था, या इसने सुना नहीं था कि वो गुलाम बख्त की कुछ लगती है। तभी मुजम्मे का फ़ायदा उठाते अना के रोकने को हाथ बढ़ाया था, पर दूसरे ही लम्हे वो शख्स ज़मीन बोस हुआ था। सर, अना बेयकीन से ज़मीन पर पड़े शख्स को देख रही थी, जिसका नाक से खून बह रहा था, जबकि गार्ड दिलहाम के सामने आया था। तभी वहाँ इलाके का डीएसपी वहाँ पहुंचा तो मामला इतना बड़ा नहीं था जितना वहाँ मौजूद लोगों ने बढ़ाते हुए अना को हरासा कर दिया था। अगले 5 मिनट में वो शख्स ज़ख्मी शख्स ने मुकमका करते गार्ड्स को अपने हॉस्पिटल ले जाने और मरहम पट्टी करवाने के अहकामात के साथ पुलिस वालों को भी निपटाया था। अना बार-बार भीगती पलकों पे अटकी नमी को साफ करती चोर निगाहों से इसे देख रही थी, जो सामने देखते मामूल के मुताबिक ड्राइविंग कर रहा था। तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। घर आते ही वो खुद इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसके इंतज़ार में खड़ा था। अना को इसकी खामोशी बहुत खल रही थी। ना तो वो डाँट रहा था, ना कोई बात कर रहा था, जबकि अना जिस ज़ैम में गई थी, वो तो मामूली सी हादसे पे ही धीमा पड़ गया था। सकीना बीबी जी के लिए कहवा बना कर लाओ। इसे अंदर लाते सामने मौजूद सकीना को अहकामात देते वो खुद कमरे में चला गया था। अना की आंखें एक बार फिर से सावन भादों का मंजर पेश कर रही थी। वो इसके पीछे कमरे में आई, जो खिड़की की जानिब रुख किए यकीनन स्मोकिंग कर रहा था। अना का जब जवाब दे गया था, वो सिसकते उसकी पूँछ से जा लगी। दिलहाम ने आंखें बंद कर ली थी। शायद इसे अना का रोना तकलीफ दे रहा था। किस जुर्म का बदला लिया तुमने मुझसे नादिल? मोहब्बत करना मेरी सज़ा थी। इस तमाम किस्से में मेरा बेगुनाह दिल और मैं कहाँ? तुम्हारी नादानी ने मुझे फ़ना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जानती हूँ शायद अपनों में इतना कोई बेरहम होता अपना हो जितना तुम बन गई हो अनादिल। जैसे उस इंतज़ार में था कि वो आएगी और उसे ज़मीन के कटोरे में खड़ा कर देगा। क्यों ऐसा हाँ बताओ। वो अचानक से रुख मोड़ते इसके सामने हुआ था। अना फूट-फूट के रोती ज़मीन पे झुकते इसके पाँव के करीब बैठी थी, ख़ताकार जो थी। दिलहाम को एक और झटका लगा था। वो 2 कदम पीछे हटा था। मेरा मकसद कभी तुम्हें चुकाना नहीं रहा ना, मैंने दोस्ती भी बराबर की सतह पे की थी। ये रिश्ता भी मुकम्मल ईमानदारी से निभाना चाहा। क्या तुम मेरे हाल दिल से जानती जो तुम्हारे हर सितम और गम पे कुढ़ता रहा। मैं जज़ा की उम्मीद रखूँ भी तो किससे? अनादिल, जिसे सबसे ज़्यादा अपना माना, खुद से बढ़ के चाहा, इसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलके किया। क्या बताऊँ? शायद वो अना की शर्मिंदगियों के सामने अपने टूटे दिल की दास्तान रखते इसे कभी सर नहीं उठाने देना चाहता था। दिल, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया कि आप मुझे सिर्फ़ एक मौका नहीं दे सकते। मैं खुद को सँवार लूँगी जैसा आप चाहते हैं। मैंने तो तुम्हें कभी खुद को सँवारने की बात ही नहीं किया नादिल, क्योंकि मेरे लिए तुम हर तरह से मुकम्मल हो। माँ सिवाय कि तुम अपनी गलतियों से सीख जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मेरी ज़ात का कसूर बता दो, क्या मुझे कभी रिश्तों का एतमाद मिलेगा? दिलहाम हूँस इस पे नज़र निगाहें जमाए ज़मीन पे दो जुनून इसके करीब बैठते सरापा सवाल था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे नादिल कि मैं कभी मोहब्बत करूँगा और इसे अधूरा छोड़ दूँगा? क्या मुश्किल है मेरे लिए कुछ भी हासिल करना जो मैं किसी भी औरत को ना हासिल कर पाता? दौलत पावर होने के बावजूद सिर्फ़ एक औरत की जान ने क्या दिन ला दिखाया नादिल, तुम्हारी बेएतबारी ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
शायद दिलहाम का लहजा और आँखें भीगी थी। अना ने भीगी पलकें उठाए इसे देखा तो जो अना की आँखें में ही झाँक रहा था, जबकि इसकी उँगलियों की पोंछ नामहसूस अंदाज़ में इसके आँसू चुन रही थी। तुम इन सोचों के अज़ाब में मुब्तला न हो कि मुझे अब तुमसे मोहब्बत नहीं है, अभी भी रोज़ अव्वल जैसी बेपनाह मोहब्बत है। दिलहाम ने इसको रुखसार पे एक हाथ रखा था। बस मुझे कुछ वक़्त दो खुद को सँभालने का। दिलहाम वक़्त अनादिल की मोहब्बत में हारा हुआ शख़्स है। आखिर के तुमसे भाग के कहाँ जा सकता हूँ, पर कुछ वक़्त दो मुझे कि मैं अपना ज़र्फ़ वसी कर लूँ। इन वहमों से निकल आऊँ कि फरहान के साथ क्या कुछ हो सकता था। लेकिन तुम्हारा आज का जज़्बाती अमल एक बार फिर मुझे काँटों में घसीट गया कि क्या तुम मेरे दिल से खेलना बंद नहीं कर सकती। दिलहम का दिल वहीं नपा-तुला लहजा अना के दिल की दुनिया को ज़ेरो-बर कर रहा था। अगरचे वो खताओं को माफ़ करने की उम्मीद बाँध रहा था, पर माफ़ नहीं कर रहा था। दिल वो इसका हाथ थामे लबों से लगा गई थी। दिलहम के लबों पे अज़ियत-सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये एक कड़ी हकीकत थी कि बेपनाह प्यार करने वाले ही अक्सर आपकी अज़ियत वजह बन जाते हैं। दिलहाम ने बारहा अपने चाहने वालों से चोट खाई थी। दरवाज़ा बजा तो दिलहाम फ़ौरन से खड़े होते दोबारा खिड़की की जानिब रुख कर गया था, जबकि अना खुद को सँभालते खुद ही अपने आँसू समेट गई। आखिर के इसके अनमोल मोतियों को चुनने वाला सितमगर बन चुका था। बीबी की कहवा। सकीना ने कमरे में रखे सिंगल स्टूल पे कहवे का कप रखा और बाहर चली गई। दिलहाम ने दोबारा मुड़ते एक सरसरी सी निगाह इस पे डाली थी जो अपनी हथेलियों में किस्मत के वार से अभी लकीरों को उलझी लकीरों को खोज रही थी। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से। सुरमई रंग का ओढ़नी ड्रेस पहने वो रुई आंखों से अजीब पुरकशी से हंसती लग रही थी। दिलाम ने अना से नजरें हटाए भाप उड़ाते मक को देखा और धीमी चाल चलते हुए मक उठाए इसके पास बैठा था। अना ने इसका पास आना महसूस किया तो सवाली निगाहों से इसे देखा। अब कुछ और भी था कहने को। ये पी लो, काफ़ी रिलैक्स फ़ील करोगी तुम। वो ज़बरदस्ती माँ से थमा गया था, जबकि अना इसके चेहरे पे कुछ खोजना चाहती थी, मगर वो शख़्स बहुत बड़ा एक्टर था जो एक बार दिल की भड़ास निकालने के बाद फिर से अपने खौल में सिमट गया था। अगर तुम चाहो तो हवेली जा सकती हो, वहाँ का माहौल अच्छा असर करेगा तुम पर, क्योंकि मैं अगले कुछ दिन काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला हूँ। जब अना जाना चाहती थी, वो कैद करके रखना चाहता था, आज इसे बिना माँगे इजाज़त दे रहा था। शायद दामन छुड़ाने का एक बहाना दरकार था। वो खामोशी से कहवा पीते रूम से निकल गई थी। दिल्हाम ने एक बार भी इसे नहीं रोका था। कमरे में आते फिर से तन्हाइयाँ इसकी साथी बनी थी। कितनी देर वो मुख्तलिफ सोचों की हिसार में रही, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से फिर से आंखें खोल मौन ली थी। अभी और हिम्मत नहीं थी दिल्हाम वक्त की घायल करती आंखों का सामना करने की। वो दबेज कालीन पे मजबूत से पाँव जमाए इसके पास आ टिका था। कुछ देर हर तरफ फिर से खामोशी छा गई थी। अना की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। दिल्हाम इस पे झुकते मोहब्बत से पुरलम्स इसकी पेशानी पे रकम किया और कितनी देर बेवजह ठहराते इसके मोहने रूप को आंखों के रास्ते दिल में उतारता रहा, जो इन चंद दिनों में गुमला कर रह गया था। वो जानता था कि वो इन लफ्ज़ों से इसे बहुत टूट चुका है, ये पर इसका मसीहा बनने के लिए पहले से अपने ज़ख्मों की रफूगरी करनी थी। एक भरपूर तमानियत का एहसास इसके वजूद में सरायत कर गया था। एक आस मिलती कि वो इसे माफ़ कर देगा। फरहान प्लीज़ कुछ तो रहम खा लो मुझ पर, क्या अपनी जान लेनी चाहती हो या मुझे मारना चाहती हो। इन दिनों से फरहान का लापरवाह अंदाज देखते दुरेत का सब्र टूटा था तभी वो इस पे बरस पड़ा। वो जो अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए बैठी छमछम ने इस पर आ रही थी, दुरेत की सख्त आवाज़ में बौखलाई थी। दुरेत ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो नाराज़ अंदाज में बोली थी। क्योंकि तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। आज भाई और अन्ना वापस आ रहे हैं, क्या सोचेंगे वो तुम इस हाल में देख के। दुरेत सही इस पे तपा हुआ था। दुरेत अगर आज हमारा बेबी होता तो हम ओ गॉड फरहान, क्या तुम इस सब को भूल नहीं सकती? क्या हमें इस चीज़ पे शुक्रगुज़ार नहीं रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने छोटी सी कुर्बानी लेके हमें ज़िंदगी भर का सुकून अदा किया है। बेबी का क्या है, हम और एक और प्लान कर लेंगे। संजीदगी से कहता दुरेत शौक हुआ तो फरहान सुर्ख पड़ते चेहरा झुका गई थी। ओ बीबी, आज शर्माते हुए काफ़ी सेंसिबल लगती हो। वो जिसकी तारीफ़ करना चाह रहा था ज़बान से गलत ले पकड़ी थी। वो की तरह इसका चेहरा देखने लगी। इसका क्या मतलब हुआ भला? फरहान के पूछने पर दुरेत ने ज़बान को दाँतों तले दबाया था। हाँ, कुछ ख़ास नहीं, मैं तो ये बस कहता कि वो बाहर चले। आई मीन काफ़ी अच्छा मौसम है, खूबसूरत सा तुम्हारी तरह। तुरंत इसके मूड में ढलने को बातें बना गया था। पता नहीं क्यों तेरे दिल में अजीब सा भाम और वसवसे से हैं। फरहान फिर से सैंटी मूड में आई थी। क्या यार, कौन से वो भाम? अब तो आरजे और उसका लूसीफर का किस्सा भी तमाम हुआ। सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। अब किस बात की परेशानी है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारा हमसाज साया बन के तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मैं सबसे पहले अपने सर लूँगा। मेरी जान, बस मेरी बेवकूफ़ बीवी बेवकूफ़ियाँ करना, उदास रहना छोड़ दो तो ज़िंदगी हसीन हो जाए।
فرحان کے سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزر رہی تھی، پر درید کا پر اعتماد انداز اسے اتنا یقین ضرور دلاتا کہ بہاروں کے رنگوں میں ڈھلنے اور خوشیوں کے سنگیت سننے کا وقت دور نہیں ہے اب۔ یقیناً لوسیفر نامی کوئی بلا اس کے مستقبل میں نہیں ہوگی۔ زندگی بے حد حسین تھی کیونکہ اسے اپنوں کا ساتھ میسر تھا، جسے ہر طرح مضبوط بنانے اور دلجوئی کرنے کے لیے ہمہ وقت اس کے ساتھ تھے۔ تنگ راستے پہ پہاڑوں سے گزرتی گاڑی حویلی کی طرح روادار تھی، جس میں فرنٹ سیٹ پہ موسیٰ اور دلہام جبکہ بیک سیٹ پر رمز اور انا بیٹھی تھی۔ رمز کے چہرے پہ ایک عجیب سا گلال بکھرا تھا۔ دلہام اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ رمز کے ساتھ اس کا روٹ انداز برقرار تھا، پر محبت پانے کا احساس فی الحال ہر رشتے پہ غالب تھا۔ یہ رمز کی فطرت کہ وہ ایک محبت کے حاصل ہوتے پھر سے سب رشتوں کو پیچھے چھوڑنے لگی تھی۔ انا کی حالت رمز کے مقابلے مختلف تھی۔ دلہم کا اچانک حویلی جانے کا پروگرام کیوں بنا تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھیں، وہ کسی بھی چیز سے آگاہ نہیں تھی، جبکہ کل رات کے بعد سے اس نے انا سے بات ہی نہیں کی تھی۔ صبح سکینہ ہی پیغام لائی تھی کہ صاحب انہیں حویلی جانے کے لیے ریڈی ہونے کا کہہ رہے ہیں، اور اب گاڑی میں ماسواد دلہم اور موسیٰ کی باتوں کے کسی اور کی کوئی بات نہیں تھی ہی نہیں۔ اسلام آباد پہنچتے ہی دلہم ان سے الگ ہو گیا تھا۔ موسیٰ بھائی دلہم کہاں ہیں، کیا وہ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ؟ موسیٰ کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر وہ پریشان سی بولی، سر کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کچھ سرکاری کام سے۔ دلہم کا رٹایا گیا جواب اسے دیتے موسیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ انا جانتی تھی کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکے گا، تبھی وہ جان بوجھ کے کچھ دنوں کے لیے کنی کترا گیا تھا۔ پورا راستہ بھیگی پلکوں سے کٹا تھا۔ حویلی میں آتے اس نے خاموش کونا پکڑ لیا تھا۔ بی جان، کیا میں اتنی بری ہوں؟ جو کچھ وہ انجانے میں ہوا تھا، کیا اس سب کی اکیلی میں ہی مجرم ہوں؟ انہوں نے بھی تو بہت کچھ چھپایا تھا مجھ سے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ دلہم کے کچھ دن کا برائے نام سرکاری کام 1 مہینے سے بھی طویل ہو چکا تھا، جبھی آج وہ بی جان کے سامنے اپنا غم لیے بیٹھی تھی۔ یوں ہی تو کم فہمی ہے تمہاری نئی نسل کی، اپنے معاملات کے خود بڑے بن جاتے ہو، بنا فائدہ نقصان سوچے۔ اور جہاں تک رہی کون مجرم ہے کون قصوروار، تو قصور تم دونوں کا ہی برابر کا ہی ہے، کیونکہ رشتوں میں بے اعتباری اور عدم تحفظ کا احساس ہی رشتوں میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اب تم اسے سزا دو یا وہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، یا تم سلگ رہی ہو، ادھر وہ بھی سکون سے نہیں ہوگا۔ اب تو انا کی جگہ جنگ بن گئی ہے شاید۔ بی جان نے اس کی کلاس لے ڈالی تھی اور مزید دکھی آتما بن گئی تھی۔ گھر میں چھائی خاموشیوں کو توڑنے کے لیے رمز اور موسیٰ کی شادی کے فنکشن رکھے جانے لگے تو اسے امید سی بندھی کہ شاید وہ آ جائے۔ گھر میں کوئی بھی اس کے آنے یا نہ آنے سے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ فرحان تو روز اول کی طرح ہر معاملات سے انجان تھی، لیکن درید کو بڑوں کی موجودگی میں رمز اور انا کے تمام معاملات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھی دل میں کچھ ناراض سا گھوم رہا تھا۔ یہ پھول یہاں لگائیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے نا، انٹرسٹ پر ہی آنے والے یقیناً اسے دیکھتے ہی خوش ہوں گے۔ فرحان درید کو خوشی خوشی مفت کے مشورے سے نواز رہی تھی۔ یار خدا کا نام لو، تمہارے مشورے پہ چل کے میں نے موسیٰ کی تقریب کو خراب نہیں کرنا۔ یہ وہ کے تو سائڈ پہ ہی لگیں گے اور ان پہ پڑتی لائٹ زبردست ویو دیں گی۔ درید باقاعدہ کیمرہ مین کے جیسے ہاتھ بناتے سچویشن بنا رہا تھا۔ موسیٰ بھی ان کی نوک جھوپ پہ مسکرا رہا تھا۔ گھر کی کوئی تقریب موسیٰ کے بغیر مکمل نہیں تھی، اس لیے اس تقریب کو بھی کمبائن رکھا گیا تھا اور اپنی ہی تقریب کے معاملات دلہا میاں خود دیکھ رہے تھے۔ تم رہنا ہمیشہ سڑیل۔ انا بھابھی آپ بات سننے یار، یہ پھول یہاں۔ فرحان، شاید تمہیں مما ڈھونڈی تھی، کسی ڈریس کو لے کر ڈسکشن کرنی تھی تم سے انہیں۔ انا باہر نکلی تو فرحان فوراً اس کے پاس پہنچی تھی، پر درید نے اسے ٹوکتے وہاں سے جانے کی وجہ بتائی تھی۔ انا کے لفظ سختی سے آپس میں بھیجے تھے۔ ایک تو ویسے ہی سب کو آپس میں مگن دیکھتے اسے اپنا آپ بہت تنہا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پہ درید فرحان کو انا اور رمز سے دور رکھنے کی ہر تودد کرنے سے زیادہ اپنے ساتھ بزی رکھتا یا پھر کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا تھا۔ درید وہ اس کے پاس آئی تھی۔ درید نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالتے دوبارہ سے اپنے کام پر مبذول کی تھی۔ کیا وہ سزا کم ہے جو تمہارا بھائی دے رہا ہے، جو اب تم بھی میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو؟ وہ ڈوب رہی آنکھوں سے اس کے سامنے ٹھہری تھی۔ او، کیا دوسروں کو زخم دینے والوں کو بھی زخم لگتے ہیں؟ سن کے بہت خوشی ہوئی۔ یار یہ تھوڑا سا آگے کر کے لگاؤ۔ وہ اسے سنوارتے پھر سے کام والی لڑکی کی طرح متوجہ ہوا تھا۔ درید، میں نے سب سے معافی مانگی تو ہے، کیا تمہارے معافی مانگنے سے اس اذیت کا مداوع ہو جائے گا جو ہم سب نے، اسپیشلی فرحان اور میں نے سہی ہے؟ تو چلو معاف کیا۔ وہ حد درجہ تلخ ہو رہا تھا۔ انا کی آنکھوں میں مرچی سے بھری تھی، کیونکہ پہلے ہی وہ شخص سے اتنا رلا چکا تھا۔ اب وہ چہرے پر ہاتھ جمائے وہاں سے بھاگی تھی۔ درید، انا بی بی بہت ہرٹ ہے۔
मूसा को उसकी हालत से तकलीफ़ हुई थी। तुरंत ने मूसा को एक नज़र देखा और आगे बढ़ गया था। वो इज़्तिरारी कैफ़ियत में अपने पाँव हिलाते शहादत की उँगली से माथा मसल रहा था, जबकि दिलो-दिमाग में एक जंग सी जड़ी छड़ी थी। वो अपनी अनादिल से बहुत दूर आ गया था, पर जैसे जिस्म का एक हिस्सा खो गया था, बेचैनी के उरूज पे बैठा शख्स अना को मुअत्तर कर रहा था। पर दिल की बगावत का कोई सानी नहीं था, जो हमवक़्त अना का राग अलापता रहता था। आज हवेली में रम्स और मूसा की शादी की तकरीब थी। यकीनन इस अहम मौके पे इसका वहाँ ना होना बहुत से सवालात और शक व शबहात को जन्म दे रहा होगा। पर वो दिमाग की ज़िद पे कान धरे बैठा है, जबकि दिल हमक-हमक के ऐनक के दीवार गिराने की राह सुझा रहा था। मोबाइल की बेल बजने पर वो मुतवज्जा हुआ था। जब से वो यहाँ आया था, पूरी दुनिया से कट के ही बैठा था और मूसा को भी सख्ती से मना किया था कि वो उसका नंबर किसी से शेयर नहीं करेगा। इस वक्त भी मूसा ही की कॉल थी। सर यकीन माने आपके बगैर ये तकरीब बहुत वीरान सी है। मूसा के लिए अगरचे एक अहम दिन था, मगर फिर भी इसके अंदाज में उदासियाँ घुली थी। शादी मुबारक हो मूसा। आई होप सब अच्छे से निपट गया होगा। इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए इसने कहा था। मूसा ने कुछ लम्हों की खामोशी इख्तियार की थी कि दिलाम को सेल कान से हटा के देखना पड़ा था, कहीं वो कॉल कॉल ऑफ तो नहीं कर गया। सर सच पूछे तो सब कुछ बेहतरीन होके भी जो एक कमी है वो सब पे भारी है। और अना बीबी, मूसा मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा, कुछ काम है मुझे। फिर से इसका जिक्र चल निकला था, जिसके नाम की बाज़ से बचना चाहता था। मूसा ने इसे कुछ तस्वीर भेजी तो वो दम साधे बैठा रहा, किसी भी तस्वीर खोलने की हिम्मत नहीं थी। आज तक जो अपनों की मोहब्बत में हारता आया था, अब भी ज़ब्त के सिले पे नाकाम हो चुकी। खनकी भरे मौसम में भी इसका दम घुटने लगा था। इसने शर्ट के तमाम बटन खोले थे, तवज्जो के धागे भटकते सैल पे चले जाते। अगर इन सब के दरमियान वो भी हुई तो भला आखिर कमज़ोर पड़ते से तमाम तस्वीर लोडिंग पे लगाई थी। अव्वल पे ही वो दुश्मन जान थी। उदासी बरसाती आंखों के साथ बीजान की कोई बात गौर से सुन रही थी। गुलाम पे मुनकशिफ होकर मूसा ने सरासर इसके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की थी और तमाम तस्वीर अना की थी। कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट थी भी तो मसनूई सी। वो हर तस्वीर को गौर से देख रहा था। जब स्क्रीन रुक गई, मतलब कि आगे कोई और तस्वीर नहीं थी। आंखों की प्यास बढ़ी थी तो अना की दीवार गिरी बेसाख्ता विसाखी तस्वीर को तकते इस पे लब जमा किया। एक अश आंखों से गिरा था। दिल की जिद है तनादिल, तुम्हें माफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दिल मुझे दगा दे जाएगा। वो खुद पे तंज करता मुस्कुराया। वो आईने में अपना अक्स देखते कमल का मुरझाया फूल लग रही थी। गुज़रे दिनों में इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। वजह खुद से हद दर्जा लापरवाही थी। दिल पूरी तरह टूटा था। एक आस थी शायद वो रमूसा की शादी पे लौट आए, पर वो तो सज़ा दे रहा था। इन दोनों को ही कुछ मुकाम अफ़सोस ये भी था कि घर में किसी ने भी इसे आने को नहीं कहा था। अना बीबी अमराव बीबी ने आपके लिए भिजवाया। आज की तकरीब में आप भी ये ड्रेस पहनेंगी। मुलाज़िमा अंदर आई तो अपने ख़्यालों की दुनिया से निकल आई थी। ये तो बहुत हैवी है। ड्रेस देखते इसने इनकार किया था। तो क्या हुआ, इस तकरीब में मेरी बहू को सबसे स्पेशल दिखना चाहिए। वो सवाल जो मुलाज़िमा से हुआ था, इसका जवाब अंदर आती इमरान ने दिया था। पर मम्मा, ये कोई इनकार और बहाने की गुंजाइश ही नहीं है। पहले 2 फंक्शन भी इंतहाई सादगी से गुजारे हैं। कौन से तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए जो ये हाल बना के रखा हुआ है। यही दिन और तकरीबात के बहाने तो होते हैं हँसने खेलने के। उम्र उसका चेहरा था, हमें प्यार भरे अंदाज में कह रही थी, क्या फ़ायदा है सबका जब देखने वाला सराहने वाला ही कोई ना हो। आरज़ेदा दिल लिए वो बोल गई तो अमराव चुप हो गई थी। क्यों नहीं, ये हम सब है ना यहाँ पर, और हमें तो तुम्हें ईज़ी दे के खुशी होगी बेटा। अमराव उसे हर तरह से बहलाना चाह रही थी। आप इसे कहे ना लौट आए। जबकि तनाबें टूटी तो वो इनके हाथों पे चेहरा दिए फूट फूट के रोती थी। अमराव का दिल भारी होने लगा था। अना की खुशी और खुद से रूठा रूठा अंदाज इन्हें भी दुखी करता था। पर वो खुद भी मजबूर थी, जिसने इन सब से राब्ता नहीं रखा था कोई। सब ठीक हो जाएगा ना, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते। चलो कल शाबाश तैयार हो जाओ, ये ज्वेलरी और हाँ अभी पार्लर वाली भी आ जाएगी, अच्छा सा टचअप होना चाहिए। वो सब मसरूफ़ से अंदाज में आज की तकरीब की मुनासबत से लाई गई ज्वेलरी वगैरह इसके सामने रखते कमरे से चली गई थी। क्या तुम्हें यकीन है वो आएगा? उसके कमरे से बाहर आते ही उन्होंने मूसा का नंबर मिलाया था। जानता हूँ, मैंने दिन रात का साथ रहा है इनसे मेरा। वो मुस्कुराया था। उमराव ने कॉल बंद की थी, जबकि इसे देखती रम्स भी उदासी के घेरे में आई थी। आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? आज मूसा और रम्स के रिसेप्शन की तरह तकरीब थी और रम्स अना की उदासी देखते मुसलसल उदासी में थी, जबकि मूसा ने इसे हर तरह बहला फुसला के देख लिया था। बस अना के लिए बुरा लग रहा है, बड़ी मुश्किलों से इनके दरमियान सब ठीक हुआ था और फिर से तवील दीवारें तर आई हैं इनके बीच।
इसकी आँखें नम होने लगी तो मूसा मुस्तरब हुआ था। देखिए रम्ज़, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। यार गरीब बंदे की सैलरी से इतना महँगा मेकअप करवाया गया तो आप ऐसे बहाने पे बैठेंगी तो अभी तो इसी की कीमत वसूल नहीं कर सका मैं। वो शौक़ी से कहता है पटरी से उतरा तो रम्ज़ की आँखों में हया की लाली दर आई थी। मैनू रंग लग गया एक हीर दा। मूसा ने गुनगुनाते हुए इसके हाथों को लबों से लगाया तो वो कुछ देर पहले की परेशानियाँ भूलने लगी थी। मूसा इसके करीब रहते इसे पूरी दुनिया को बुलाने के हुनर से आशियाना था। उसका हाथ थामे गाड़ी तक लाया और फिर हॉल तक। पर्ल से सजा हैवी दुपट्टा इसे अपने वज़न से ज़्यादा लग रहा था। कुछ ऐसे ही हाल इस लिबास शहाना का था। बहुत प्यारी लग रही हो ना मैम। मैं कह सकती हूँ कि दिल्हाम सर बहुत लकी जिन्हें आप जैसी वाइफ़ मिली है। पार्लर वाली ने बेतरीकी तारीफ़ करते अनजाने में इसके ज़ख्मों पे नमक छिड़का था। वो चाह के भी मुस्कुरा ना पाई थी। तनफ़ती नज़रें अपना मौजूदा हाल पे डाली। कुछ देर पहले अब की हालत में वाज़ेह फ़र्क था। पहलू में एक कमी सी थी। इसके इश्क में इतना बचपना था कि वो बहारों जैसा शख्स सँभाल नहीं पा सकी थी। कर्ब के आलम में आँखें बंद की, कुछ लम्हों के बाद खोली तो पहलू खाली न था। इसके अलवदन मोहब्बत की तख्लीक जैसे शख्स को इसका साथी बना गया था। इसने भीगी पलकों से 2 कदम आगे बढ़ते आईने में नज़र आते शख्स को छुआ था। 1 महीने बाद की बंदगी इतनी पुख्ती इख्तियार गई थी कि हर तरफ ही इसका गुमान था। ज़ख्म गोदा लिबासों पर, लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। टीपिंग लिपस्टिक से मतीन चपनी लबों ने हौले हौले से इस अक्स से इकरार किया था कि जबकि उंगलियां इस अक्स पे अपनी खुशबू बिखेर रही थी। इस मुजस्सम में हरकत हुई थी। आईने से उभरता अक्स धीरे धीरे कदम उठाए इसकी जाने बढ़ रहा था। अना के मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। यकीन था कि पीछे मुड़ते सब खत्म हो जाएगा, पर धड़कनें बेतरतीब हुई थी। फासला घट रहा था। वो उसकी पुष्प पर आकर रुका था। गर्म सांसों की तपिश से अपने कान की लूप महसूस हुई थी। वो बुत की मानत एकटक इसे देखी जा रही थी। एक बार इसकी उँगलियों ने आईने को छुआ, जबकि वो अक्स अना की पुश्त पे झुका था। इसकी उँगलियाँ इस शैबे को छूने से महरूम रही थी, पर अना की पुश्त एक आशाना लम्स से महक उठी थी। वो झटका खाते मुड़ी थी। दिल्हाम इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जबकि अना को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो वाक़ई इसके कितने करीब है। उसके मुड़ने से अना का चेहरा दिल्हाम के चेहरे से टकराया था। एक करंट की लहर से पूरे जिस्म में दौड़ी थी। इतने दिन बाद मिलन की चाहत थी, पर लम्हों में मुअस्सर गुर्बत ने गोया चमन को कलियों से भर दिया था। दिल-ए-मना की बेतरतीब साँसों का तेज़ रिदम अपने चेहरे पे महसूस कर सकता था। ये इस हाई हील का कमाल था कि आज अना दिल्हाम के बराबर में खड़ी थी, जिसका चेहरा इसके चेहरे से टकरा रहा था। अना की आँखों में भी अभी भी हैरानगी थी। यकीन ही नहीं आया था कि वो आ गया है। दिल्हाम ने इसका वही हाथ थामा जो आईने में इसका अक्स को तलाश रहा था और अपने चेहरे पे फिरते इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का यकीन दिया था। दिल्हाम के हाथों में थामा हाथ इसके नकुश खोजते जान कसीन लम्हों के एहसार में था, तो लबों से सरगोशी सी उभरी थी। दिल्हाम लिपस्टिक से मचीन होठों के रास में पनाह मोतियों जैसे दांतों की झलक के साथ इनकी जंबिश में खोया हुआ था। वो वाक़ई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, या इतने दिन बाद रूबरू यार होने का सहर था जो इसे इस वक्त दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। दिल मग़रूर सा हुआ था कि वो दीवानी सी लड़की इसकी मलकियत में थी। दिल अना इसकी आवाज़ सुनने की मतना थी। इसे इन हयात लम्हों की निशानी में इसकी आवाज़ की चाशनी भी चाहिए थी, जो वजूदे ज़िंदगानी बख्शे। तभी दिल्हाम ने इसका हाथ अपने चेहरे से हटाते लबों से मिस किया था और अना को अपने बेहद करीब करते इसके आवीज़ों पे निगाह जमाई। इसके लब हिले तो अना की धड़कनें थमी थी। अपने दिल का ख्याल रखना इन सियाह आँखों से, मेरी जान आओ मिलके इस कहानी का दिल बनाएँ। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी मंज़िल हो और मैं इतना अबर मेहरबान सा लम्हा हूँ तुम्हारे लिए। वो यकटके इसके हिलते लबों पे नज़र जमाए इसकी जो जुदाई आवाज़ में खोई थी। हर तरफ ही रोशन उजाले बिखरे थे। खिड़कियों से झाँकती चाँदनी ने इन लम्हों के अमर होने की गुज़ारिश की तो वो सितारों से मोहब्बत की साज़िश में शरीक होने में राह सजा दी। आज की रात मोहब्बत की रात है जो फिर से मुझे मोहब्बत में मुब्तला कर दो। चलो मुझे अपनी मोहब्बत से संवार दो, मुझे अपना पागल कर दो, गुलारों से सिला करो। आओ और शबारों को मोहब्बत के रंग में रंग दे। आज रात अपने तमाम गम दूर कर दें। दिल्हाम बख्श से आगे बढ़ने का कह रहा था, मतलब कि माज़ी का ठान बुलाए वो मुस्तकबिल की राह सजा रहा था। वो अपनी अनादिल से ज़िंदगी की खुशबख्त रंगों से सुलह का कह रहा था। नम आँखों के गोशे पे मौजूद भौरा तिल मुस्कुराया तो होठों पे एक भंवर पड़ा था। दिल्हाम का हाथ इस भंवर की गहराई खींचने पर इस पर पड़ा तो अना ने इसके हाथ पे हाथ रखते इस भंवर को मुकीद करने की चाह जतलाई थी। दिल्हाम अमृत खोलने को इस भंवर पे झुका तो अना ने आंखें बंद कर ली थी।
دل محبت کرنے کو بے چین ہے جس کا دل نے لکھا ہے۔ دلہام کی عرضی پہ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ اگر تم کرو گی تو میں کروں گا۔ انا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا تھا۔ دلہام نے شانے اچکاتے دوری اختیار کی، گویا اجازت درکار تھی۔ وہ اسے حیران ہی تو کر رہا تھا، بھلا کون کسی کو محبت میں اتنا معتبر کرتا ہے کہ محبت کے لیے بھی اجازت درکار تھی۔ دلہام کے پیچھے پڑتے قدم انا کے اندر خالی پن احساس بکھرنے لگی تھی۔ دل نہیں، وہ فاصلہ لمحوں میں سمیٹے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ یہ محبت کی رسم ہے۔ دلہام نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دل کے آپ اپنے سے سب سوچ لیں اور دوسرے انسان کو بیچ میں اندار چھوڑ جاؤ؟ کیا محبت صرف آپ نے کی تھی دل میں؟ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی، تبھی دلہام نے ہلکے سے اس کا سر تھامے اس کا چہرہ بالکل اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، گزرے دنوں کے ہزار شکوے آنکھوں پہ ابھر رہے تھے۔ دوسرے پل ان شکووں کو دور کرنے کی سبیل نکالی گئی اور دلہام نے شبنمی ہونٹوں کے لفظ چنے تھے۔ اس کا دل اپنے بس میں نہیں رہا تھا۔ اتنے دنوں کی پیاس بجھی تو ایک سرور سا رگوں میں اترا تھا۔ انا کے لب مسکرائے تھے، سرشاری میں ہی حد سوا تھی۔ انا دل، دلہام نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر پکارا تھا۔ آپ بہت برے ہیں دل، وہ منہ وسوڑتے ہلکا سا مکہ اس کے کشادہ سینہ پہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ دل کی انا، دل بہت اچھی ہے نا، ہم اس پہ صبر و شکر گزارا کر لیں گے۔ دلہام کی آنکھیں اس ملن پہ چمک رہی تھی تو انا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہٹا تھا اور سر تا پیر تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ انا تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، بالکل اپنی اپنی سی انا دل۔ سادہ لفظوں میں کی گئی تعریف انا کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یہ امراؤ مما، کیا انہیں پتہ تھا آپ آ رہے ہیں؟ انا کی ذہنی روح بھٹکی تھی۔ امراؤ کا اصرار کرتا انداز اور پچھلے 2 دنوں کی نسبت آج کے دن کا خصوصی اہتمام اسے اپنا ان کا منصوبہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ دلہام نے گردن اس بات میں ہلائی تو وہ خفا سی منہ پھیلا کے، مطلب کیا ہے، سب مل کے مجھے بیوقوف بناتے ہیں، کسی کو احساس نہیں تھا میں کتنی تڑپی تھی اور یہ سب میری حالت سے مزہ لیتے رہے۔ انا کو اپنی 100 کے حساب میں گزرے دنوں کی یاد آئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا موسیٰ کو کہ کسی کو نہ بتائے، لیکن اس کے پیٹ میں کچھ کہاں ٹھہرتا ہے۔ دلہام نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا موسیٰ بھائی کو پتہ تھا آپ کہاں ہیں اور مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا گئے؟ وہ صدماتی انداز میں بولی تو دلہام کو موسیٰ کی متوقع شامت کا سوچتے ہنسی آئی تھی کہ اتنا کافی نہیں، میں یہاں تمہارے سامنے ہوں اور سجر کی طویل شام کا حساب کون دے گا جو میں نے آپ کو یاد کرتے گزاری ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی۔ تمہاری شکووں کا جواب میں بہترین انداز میں دے سکتا ہوں اگر تم میرا ساتھ دو، پر افسوس کہ امراؤ مما کی یہ محنت غارت ہو جائے گی۔ دلہام نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ بولو، جواب چاہیے؟ دلہام کی میں نے خیالی نظروں کی تاب نہ لانا اس کے بس میں کہا تھا، پلکیں جھکی تھیں۔ غم کی شام جتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر اسے ایک دن ڈھلنا ہی تھا۔ تبھی روشن سویرا ہوا تھا۔ کیا بھائی مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے؟ رمز نے مہمانوں سے ہنس ہنس کے بات کرتے دلہام کو دیکھتے اپنے برابر بیٹھی انا سے کہا تو اس کی پسماندہ شکل دیکھتے اداس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں رمز، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریت بھی بات نہیں کر رہا۔ رمز کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انا اسے کیا تسلی دیتی جو خود سب کے عجیب رویے فیس کر رہی تھی، پر دلہام کے آنے کے بعد وہ بے انتہا خوش تھی۔ ایک بھرپور دن کا اختتام بہت سی اچھی یادوں کو لیے ہوا تھا۔ ریسیپشن کے ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے اسے بازو سے تھامے احتیاط سے دیوار سے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ ابھرا تھا، لیکن آشنا گرفت کی پکڑ کی محسوس تو لب مسکا اٹھا تھے۔ اس نے برابر ابرو چکا کے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں آنے تک 1 انچ کا فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی لباس بدلنا ہے۔ دلہام بخت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے تحکم دیا تھا۔ انا کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا جو اسے ڈریس نہ چینج کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بہت ہیوی ہے، میں تھک گئی ہوں، منہ وسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور لمبے لمبے ڈنگ برتا گیلری میں کہیں غائب ہو گیا۔ انا کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ سرشار سی اپنے روم میں آئی تھی۔ اپنا جائزہ لیا تو خود کو صبح سے زیادہ فریش پایا۔ یقیناً یہ سب اس شخص کی کچھ گھنٹوں کی صحبت کا اثر تھا۔ دل میں گزری ساعتوں کی عذاب سوچوں کا ہجوم ابھی بھی برپا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مسیحا ہے۔ یقیناً گزرے کل کو ماضی بننا تھا اور ماضی میں جینا بھلا کہاں کی دانشمندی تھی۔ ادھر دلہام انا سے ملنے کے بعد دادا جان کے کمرے میں آیا تھا اور نریت کو بلایا تھا، ساتھ ہی رمز کو بھی۔ اس وقت دادا جان اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ رمز کے چہرے پہ گھبراہٹ سی طاری تھی۔ دونوں کو سامنے دیکھتے کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی کو دلہام کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔
मैं जानता हूँ कि आरजे के मामले में दरअसल मेरा ही कसूर है, जिसने एक कतई अनजान शख्स को महज़ दोस्ती के नाम पे अपने घर में घुसाया था। ज़िंदगी के हर मोड़ पे बहुत से लोग मिलते हैं, जिनकी फ़ितरत कुछ लम्हों के लिए हमें अच्छी लगती है और हमें इन्हें अपना मान बैठते हैं। मसला ये कि हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, कभी ये नहीं सोचते क्या वो भी हमारी जैसी सोच लिए बैठे हैं या कुछ मुख्तलिफ है। दिल्हाम ने गहरी सांस भरते फिर से अपनी बात का ताल्लुक जोड़ा था। आरजे के मामले में मैं भी अपनी दोस्ती को लेकर एक तरफ की सोच पे चलते अपने ख़ानदान को मौत के दहाने ले आया था, पर वक्त पड़ते संभल जाने से शायद हमने फरहान को इस दरिंदे से बचा भी लिया है। लेकिन इस ख़ानदान के एक और जज्बाती इंसान ने वो कहानी फिर से दोहराई। एक बार फिर एक अजनबी पर भरोसा किया गया। दिल्हाम ने सख्ती से आंखें मीचते दोबारा से आंखें खोली थी। रम्स की आंख से एक आंसू टपका था। इस बार की कहानी इसलिए भी दुश्मनों को फ़ायदा दे गई कि घर की बेटी ने अपने भाइयों पर भरोसा करने की बजाय गैर शख्स पे एतमाद करना ज़्यादा मुनासिब समझा था। रम सिर्फ एक बात पूछनी है मुझे आपसे बेटा, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपके भाई का आपका साहिबान नहीं बनेंगे, आपकी पसंद को नहीं अपनाएंगे? एक बार बगावत करने से पहले सिर्फ एक बार दुरेद या मुझे कहा होता कि तुम्हें मूसा पसंद है। तुम्हें आरजी से ख़तरा है। तुम्हारे भाई इतने कमज़ोर तो नहीं थे कि वो हैसियत की खातिर मूसा को ठुकरा देते। अगर बचपन में किसी भी लड़की की गलत जिस पे तुम अपनी भाइयों को शिकायत लगा सकती थी, तो अब क्यों नहीं भरोसा किया भाइयों पे? बावजूद ज़ब्त दिलाम की आंखें सुर्ख हुई थी। आई एम सॉरी भाई, मैं रम्स की हिचकियों ने बात मुकम्मल ही नहीं करने दी थी। तुम मूसा पे भी तो भरोसा कर सकती थी ना, वो भी तो तुम्हारा महरम है। दलहाम के सवाल बहुत कड़े थे। मुझे लगा शायद आप लोग सिर्फ एक शायद पे इन्हिसार करते। तुमने एक अजनबी शख्स की उंगली पकड़ते इसकी अंधी तकलीद की तरह। ऐसा कहीं नहीं होता बेटा। मुझे बस यही कहना है, अपने महरम रिश्तों को अहमियत देना और उन पे भरोसा करना सीखो मेरी जान। अनहा का मामला ही अक्सर अलग था। वो वो अनजान थी आरजे से, पर तुम तो नहीं। दिल्हाम ने खड़े होते गोया इसे यहाँ बुलाने के मकसद से आगाह किया तो उसे देखने लगी थी। दुरेद भी इसी तकलीद में खड़ा था। भाई मुझे माफ़ कर दें। उसका हाथ था। मैं फूट-फूट कर रो दी तो दिल्हाम ने इसके सर थपथपाया था और आँखों से दुरेद को मुँह में इशारा किया तो वो भी रम्ज़ के गिर्द एक तहफ़्फ़ुज़ देता इसार बाँध गया था। तुम खुद ही तो कहती थी रम्ज़ की तुम्हारी दोस्तें कहती हैं काश इन्हें दिल्हाम और दुरेद बख्त जैसा भाई मिले। फिर अपने भाइयों बेमोल कर दिया पागल। दुरेद ने हल्का-फुल्का अंदाज़ अपनाते इसके सर पे हल्की-सी चपत रसीद की थी। सॉरी भाई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। इसकी वजाहत में दल्हाम ने इसे सीने से लगाया था, वहीं हाथ बढ़ाए दुरेद को भी अपने हिसार में लिया था, जैसे इसने अपने आशियाना में इन पंछियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था। वो तो एक सौतेली मैं ही थी। फरहान की आवाज़ पे वो चौंके तो जब ही वहाँ आई थी और बहन-भाइयों के मोहब्बत भरे मुज़ाहिरों पे काफ़ी जेलस नज़र आ रही थी। दिल्हाम ने इसे इशारे से पास बुलाया था। वो दिल्हाम के शाने से आ लगी। दुरेद ने आँख दबाई से इशारा किया तो दिल्हाम के सामने इसके फ्लर्ट पे घबरा उठी। दिल्हाम खुश था कि बख्त हवेली के भटके पंछी आखिर अपने आशियाना तक पहुँच गए थे। इसे यकीन था कि सब अब के रिश्तों को अहमियत दी जाएगी, इनमें तवाज़ुन रखा जाएगा। वो बार-बार घड़ी को देखते हुए दरवाज़े को देखी थी, पर दिल्हाम बख्त के आने से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तभी झंझलाते हुए उसने अपने पाँव की हिल की कैसे आज़ाद किया और सोफ़े की पूँछ से टेक लगाते गुस्सा पीने की कोशिश करने लगी थी। दिल्हाम कमरे में आया तो वो गहरी नींद में जा चुकी थी। इसे बेख्तियार शर्मिंदगी ने घेरा कि वो इसे इंतज़ार की सूली पर लटकाते खुद मसरूफ़ हो गया था। दरवाज़ा लॉक करते हुए उसके पास आया था, एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाली तो लब आप ही आप मुस्कुरा उठे थे। मूसा ने जो तस्वीर भेजी उसकी सब्र की दीवार में आखिरी कील साबित हुई थी और सब छोड़-छाड़ के पहली फ़्लाइट से वो आ पहुँचा था और वहाँ आते इसे अपने फ़ैसले सही होने का अंदाज़ा हुआ था। अना को इसे देखते ही जो हालत थी जिस सहरा में भटके शख्स के सामने पानी का कुआँ आ गया था। एक पुरसुकून गहरी साँस भरते इसने अना को बाहों में भरा था और लिए बेड पर आया। कम से कम आज की रात तो सोने की नहीं थी ज़ालिम लड़की, वो इसके आवी से ताड़ता बोला, जो यकीनन इसे नींद में डिस्टर्ब करते। माय स्लीपिंग ब्यूटी। दिल्हाम ने इस पे झुकते इसके माथे पर नफासत सजी बिंदी को ताड़ने की सरगोशी की थी, फिर भी कदर नहीं। इसके सरगोशी का जवाब आंखें पट से वाक़िए दिए गए तो दिल्हाम का कहकमा बुलंद हुआ था। अब ऐसी भी बात नहीं है, आपने मौका ही नहीं दिया कि बता सकें कि कितनी कदर है आपकी, और बल्कि दूर जाके तो कुछ ज़्यादा ही कदर हुई है।
दिलहाम के हाथ इसके गले में लटकती चेन में उलझे थे, वहीं इसके दिल छूते लम्स पे अना की सांसें थमी थी। दिल आप बहुत ख़राब हो गए हैं, वो हल्की सी मजम्मत करते हुए बोली थी। बिल्कुल ये एक मसला है कि मिस्टर दिल अपनी अनादल को भी इसी ख़राब रंग में ढलते देखना चाहते हैं, यानी मोहब्बत के रंग में। दिलहाम के लबों पे शरारती मुस्कुराहट का बसेरा हुआ तो कभी इसे घूरती और कभी इसके शरारतों से महफूज होती अना की छिपी छिपी हंसी के कई गुलों में रंग भेर बिखेर दिए।